हेलो दोस्तों, भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट आपका स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है और सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को गाढ़ा गाढ़ा जय जोहार करता है। कैसन हो दोस्तों? बने बने। थोड़ी देर में अंग्रेजी में बोलूंगी क्योंकि कुछ दोस्त हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस भी हैं। उसके बाद हम फिर हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके क्वेश्चन आंसर्स का सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। Bhilai Education Charitable Trust welcomes you to our first Facebook Live ever. In today's session, you will meet Simi Karan, who has recently been in the news for her spectacular performance in the Union Public Service Commission's Civil Services Examination 2019. She is one of the youngest candidate and she has got an All India ranking of 31 in her very first attempt. Bhilai Education Charitable Trust, lovingly called as BECT or BECT, is proud of Simi's achievements and feels humbled to be associated with her. Simi is the recipient of BECT's Academic Excellence Award in 2015. Who are we and what do we do? Let me just introduce Bhilai Education Charitable Trust to you. BECT was formed in 2014 by some of us who grew up in Bhilai. We have given various scholarships for academic excellence and when it means scholarships to those in need. We provide free JEE and NEET training to talented students. BECT has credited and helped many people, those who were in need. We have also created digital classrooms in various schools and have also set up a computer lab in Azad Hind School. We provide free NTSE coaching, spoken English coaching, free computer education at Neki Ki Pathshala, which is run by Ms. Matthew Mathur, who is doing good job in Bhilai. Our volunteers from BIT, Bhilai Institute of Technology, help the visually challenged with their academic learning by tutoring them. We are providing online JEE and NEET classes during the pandemic for over 40 students and above. We also conduct health awareness camps, BECT talks to motivate, nourish, and guide young minds, book distribution camps, and organize various contests through our social media platforms. So keep looking out for these events on our Facebook page, Instagram page, Twitter, and we are going to soon join LinkedIn. We have touched over 1,200 lives with the help of our team of 41 members, including trustees, advisory members, donors who make a special part in our heart, volunteers, and now we are having BECT ambassadors, for which Simi is also a part. We spent about 25 lakh in a year, and we are aiming to do much more in Bhilai. And we can do so this if you can join us. You can help us by, I can see Rita and Matri Mathur. Guys, hi. So we are aiming to do much more and we invite you to please come and join us. If you would like to be involved in any of our activities, you can write to us. Our email address and addresses are mentioned and phone numbers are mentioned on the website. Together, we can bring smiles and see the change. So do like and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and our website, bect.co.in. Please like our Facebook page today to activate the comment box where you can ask questions regarding the chat today with Simi Karan. Without much further ado, let's welcome the bright sunshine girl from Chhattisgarh, Mor Mati ke beti, Simi Karan. Welcome, Simi. Hello, Welcome, ma'am. Simi. Hello, everyone. So wonderful to see you. That कैसा लग रहा है बेटा? was आप an तैयार amazing हैं? virtual invitation, ma'am. अच्छा. बहुत बहुत अच्छा You लग रहा है. like the interview part or you Yes, like ma'am. the activity part of it? I like them both. I think both play a major role. Activity primarily because it's reaching out to so many, and interviews because I think it's a motivation for so many of us. Good. So I'm good to see that right in time, we have so many people joining us, and I'm sure they will also watch the video recording.
So I think we can just continue. And yeah, I would just like to mention that you have a fan following in Bhilai. And whenever they see your pictures on Facebook or on WhatsApp, people use it as status updates. So there's a huge gang of girls who are like sending me hearts and telling me to announce here on live Facebook live कि सिमी दीदी को बोलना कि मेरा हार्ट उनके पास है. शी इज माय ह्यूज इंस्पिरेशन. सो आप एक है That युतिका is so और sweet. उसकी फ्रेंड्स को हेलो बोल दीजिए. Hello, Yutika. Hello, all your friends. Thank you so much for sending me your loves and wishes. ओके सिमी, एक क्वेश्चन सबसे पहला वो ये है कि हाउ डू यू नो योर सेल्फ एज इन योर माइंड. जब सिमी खुद से बात करती है तो कैसे एड्रेस करती है? सिमी छत्तीसगढ़ की टॉपर, प्रेस्टिजियस बीटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, और योर न्यू नेम विच इज अ कोड UPSCCSC 2019AIR31. I don't know, मतलब मैंने कभी भी अपने मन में खुद को so called IITN और now the new tag of AIR31 उसकी तरह से अपने मन में खुद को एड्रेस नहीं किया है. Okay, this was an achievement, this was something I strived hard for and I achieved it. But हमेशा मेरे मन में एक चीज रहती है कि what next? What will be the new exciting activity that I'll be doing next? What will be something new that I learned today? तो मेरे मन में मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल करती रहती हूँ कि अच्छा अब मैं क्या करूंगी. सो आई रिमेम्बर जब रिजल्ट आ गए थे और एक दिन पूरा दिन मैं बैठ के बस बिस्तर पे नेटफ्लिक्स चलाई थी. एंड माई मॉम वाज लाइक, बेटा तुम तो उससे पहले ज्यादा एक्टिव थी, व्हाट हैपेंड टू यू? I think I'm looking for a new purpose in life. That was my answer to her. That's lovely. One full day means तुमने कोई वेब सीरीज देखी है back to back, binge watching. Yes. Which one was Yes. that? Which one was that? That was House of Cards. Oh, lovely. So, सिमी, हमें शुरुआत से शुरू करना है. एक बहुत पॉपुलर और बहुत खूबसूरत सा कोट है, डीप इन द रूट्स ऑल फ्लावर कीप द लाइट. टेल अस अबाउट योर रूट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली. जन्म कहाँ हुआ और उड़ीसा से आपका क्या संबंध है? So I have been born in the state of Odisha, and both my parents are Odia. We belong to the district of Balasore. So that is a border district between Odisha and West Bengal. So culturally we are very close to both the states. वहाँ से फिर my father works in the Bhilai steel plant. He is currently a general manager in the finance department. So the entirety of my life I have spent in Chhattisgarh. So I'm a true Bhilaian at heart, जिसे कहते हैं. And my mother is a teacher at DPS Durg. I have one younger sister. जी. आप अपने परिवार वालों के नाम बता दीजिए, मम्मी पापा और बहन का. My father's name is देवेंद्र नाथ करन and मेरी मदर का नाम है सुजाता करन. मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है रिमी करन. She is in class 12th right now. So अपब्रिंगिंग तो मेरी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली टाइप हुई है. सो बीएसपी के क्वार्टर में पले बड़े हैं. राइट नाउ वी शिफ्टेड टू रिसाली. इसके पहले पूरा लाइफ हम बीएसपी सेक्टर 4 में रहे हैं. मेरे नाना नानी राउरकेला में रहते हैं और मेरी दादी विलेज में रहती हैं उड़ीसा में. सो काफी आना जाना हमेशा लगा रहता है. ऑल समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस और फेस्टिवल्स हम वहां जाते रहते हैं. That's it, I guess. हाँ, उड़ीसा में कहाँ पे जन्म हुआ आपका? So उड़ीसा में राउरकेला में ही मेरा जन्म हुआ है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. My grandfather is a gynecologist. मेरे नाना जी gynecologist हैं. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. सो ये बात पूछनी जरूरी थी क्योंकि रूट्स जो है आपकी वही आपको आगे ले जाती है और वो मजबूत होना बहुत जरूरी है. तो अब आप हमारे साथ शेयर कीजिए आपकी अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरी. I'm sorry, can you repeat the question? Would you like to share with us your earliest childhood memory? Anything. Earliest का तो मुझे याद नहीं, but one memory जो मेरी मम्मी सबको रिकॉल करती है, that is जब मैं बहुत छोटी थी, I think तब मैं स्कूल जाना भी शुरू नहीं की थी, प्री स्कूल टाइप में थी. तो I used to see the newspaper, but मुझे ज्यादा समझता नहीं था. So I used to find the pictures very flashy. And I used to say कि मम्मी अच्छा न्यूज़पेपर में अगर तुमको फोटो चाहिए अपना तो क्या करना पड़ेगा. तो मम्मी ने कहा
कि बेटा अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको मन लगा के करो, तो देन यू विल कम इन द न्यूज़पेपर। अब एंड समझ आई आया। गॉट सो एक्साइटेड दैट डे कि ठीक है, अब तो मुझे न्यूज़पेपर में अपना फोटो चाहिए। एंड आई रिमेम्बर एज अ किड, आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय फोटो वाज समवेयर इन क्लास 3, किसी ओलंपियाड के लिए. सो आई गॉट सो एक्साइटेड दैट डे. सो दैट इज सिमी, वन मेमोरी दैट आई चेरिश अ I'm लॉट. so proud of you, and it's such a wonderful time talking to you. I mean, I should let my viewers know that for this live event, Simi and I must have spoken thrice or four times, I think so. Yes, And it was such a lovely chat. एक दिन हमने पता है 50 मिनट बात की थी. true. अच्छा, एक बात बताइए आप हमें कि जब आप छोटी थी तो लोग आपसे पूछा करते होंगे बेटा बड़े होके क्या बनना है, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू आर ओल्डर, तो तुम्हारा Yes, जवाब ma'am. जवाब क्या होता था? एक्चुअली दिस इज वेरी फनी बिकॉज जैसे हर बच्चे के मन में एक ऐसे फेजेस आते हैं कि अब मुझे ये बनना है, अब मुझे ये बनना है, अब मुझे ये बनना है. तो शुरू में तो जैसे सबको ही लगता है कि डॉक्टर बनना है. सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर. नाउ आई थिंक आई वॉज 12 years old अराउंड व्हेन वी वेंट टू पूरी, जगन्नाथ टेम्पल इन पूरी. तो वहां एक बरगद का पेड़ है जहां पे आप एक रस्सी बांध के मन्नत मांग सकते हैं, सीक्रेट थ्रेड बांध के. तो वहां मेरे पापा ने बोला बेटा जाके थ्रेड बांध दो और बोलना भगवान को कि तुम्हारा आईआईएम क्लियर करवा दे. तब मुझे आईआईएम का मतलब भी नहीं पता था. मैंने बांध दिया. आके बोला पापा डॉक्टर के लिए तो एमबीबीएस पढ़ते हैं, तो ये आईआईएम क्या चीज है. तो दैट वाज द second phase when I got to know about MBA and all of that. Then comes 11th and 12th, जब सब कोई इंजीनियरिंग की तरफ थे तो मैंने भी इंजीनियरिंग किया एंड आई गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे. शुरू में रिसर्च का बहुत शौक हुआ, फिर वो उतर गया. फिर एमबीए का शौक हुआ, फिर वो उतर गया. देन आई कंसिडर्ड अ टेक्निकल इंटर्नशिप जापान में. तो उसके बाद तो क्लियर हो गया कि 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं करना है. एंड तब जाके कहीं ना कहीं आई फाइनलाइज कि आई वांट टू गो इनटू सिविल सर्विसेज. 9 to 5 जॉब नहीं करना है, लेकिन आईएएस तो 24 आवर्स जॉब करता है. So that is the fun part of this job. It keeps you on your toes. बच्चे जो सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि सिमी ने बचपन से लेके अभी तक कई बार करियर ऑप्शंस बदले हैं, तो ये कंफ्यूजन पक्के हैं, हर इंसान को होते हैं. अच्छा सिमी, जी. एक बात बताओ कि अर्ली स्कूल डेज में तुम किस तरह की स्टूडेंट, वो तो तुमने बता दिया कि तुम थर्ड में तुम्हारा नाम छपा था, है ना? पर ऐसा कोई इंसिडेंट तुम्हें याद है कि अभी जो ड्रीम देखी है, ये जो मटेरियलाइज हो रही है, इससे कहीं तुम उसको लिंक कर पाती हो कि ये टोटली डिफरेंट है उन ड्रीम से? मेरे को क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं. अच्छा, जो अर्ली स्कूल डेज में तुम्हारी जो जैसे ड्रीम्स आती थी ना कि पेपर में नाम जी. छपाना है, और फिर जी. आईआईएम पापा ने धागा बंधवा दिया जो तुमने पढ़ा भी नहीं, है ना? हम्म. अभी हो भी सकता है तुम कर भी लो, वी डोंट नो. सो तुमने कभी सोचा था तुम ऐसे आईएएस टाइप ऑफिसर या कुछ ऐसे बनोगी, ऐसे ऑफिसर सोचा था, या टेक्निकल प्रोफेशन ही सोचे थे? एक्चुअली चाइल्डहुड में ऐसे अगर मैं 12th तक बोलूं तो मेरे फादर एक पीएसयू एम्प्लॉय, मेरी मम्मी एक टीचर, मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स में फॉरेस्ट सर्विस वगैरह में हैं. बट उस फील्ड का कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला. मैं सच बताऊं तो मुझे सेकेंड ईयर तक कॉलेज के ये नहीं पता था कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है एंड उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो करता क्या है. तो उस तरह की कि जब एक्सपोजर ही नहीं रही तो वो कभी ना कभी कहीं भी मन में कभी आया नहीं कि हाँ ये भी एक करियर ऑप्शन है जो हम कंसिडर कर सकते हैं. एंड इसमें मुझे याद आ रहा है द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो सो वेल अबाउट आईएएस वाज जब मैं सेकेंड ईयर के बाद एक पब्लिक पॉलिसी बूट कैंप में गई थी. दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विजन इंडिया फाउंडेशन एट सोनीपत हरियाणा. वहां एक आईएएस ऑफिसर ने एक स्पीच दिया था. दैट वाज मिस्टर अनिल स्वरूप सर. Back then he was the school education secretary, and I can tell you I was mesmerized by every word that he said. I mean, उस time that was a sort of trigger point in my life कि this is definitely worth considering, this is something we can build a career in. तो बट फिर वो एक बैक सीट ले लिया और कहीं ना कहीं फाइनल ईयर में जाके ही ये फाइनलाइज हुआ. सो नो, इट वाज नॉट अ चाइल्डहुड ड्रीम फॉर मी. ये बात सबको जानना बहुत जरूरी है कि सिमी ने आईएएस का फैसला, आईएएस में एग्जाम देगी इसका फैसला फाइनल ईयर में ही किया, उसके पहले नहीं. लेकिन सेकेंड ईयर में उन्होंने सोनीपत में आईएएस ऑफिसर की स्पीच सुनी थी जिससे वो मोटिवेट हो गई थी. आप जी. छत्तीसगढ़ की सीबीएसई की टॉपर रही हैं. अगर मैं ये जी. सवाल ना पूछूं
कि आपने ये हुनर और ये कमाल कैसे किया डीपीएस। ओ शिट, सिमी हैज लॉग्ड आउट, आई थिंक उसका कोई फोन कॉल आ गया है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। शी इज जस्ट बैक। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सवाल आपके छत्तीसगढ़ टॉपर होने से था कि आपने छत्तीसगढ़ टॉपर होने के लिए क्या रणनीति या क्या स्ट्रैटेजी प्लान की थी, जिससे कि आपने ये गौरव हासिल किया। और डीपीएस की हर टीचर, जो उसमें से कई मेरी सहेलियां भी हैं, बहुत तुम्हारे तारीफ करती रहती हैं। तो आप हमें प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। मैम एक्चुअली शुरू से तो मैं एकेडमिकली काफी अच्छी रही थी। आई विल नॉट से कि ये सिर्फ हार्डवर्क है, एकेडमिकली ऑल्सो आई वाज गुड। बट जैसे हम 11th-12th में हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो सिलेबस तो आपका पूरी तरह से उसमें कवर हो जाता है। बट जब जैसे प्री बोर्ड आया जिस समय, या उसके पहले भी जो मंडे टेस्ट होते थे, उनको मैंने सीरियसली लिया था। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं मेरी स्कूल एजुकेशन सफर कर रही थी बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। मैंने दोनों को बैलेंस में लेते हुए चला। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए थे थोड़े, किस टाइप का किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लिया था। प्री बोर्ड्स में मैंने काफी मेहनत कर ली थी, ऑलरेडी हार्डवर्क कर ली थी, ताकि मुझे बोर्ड्स के समय उतना ज्यादा प्रेशर फील ना हो। तो इस तरह से एक अलग से थोड़ी सी सीबीएसई की भी तैयारी हो गई थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल किया था, अदर देन जो मैं जेई की तैयारी कर रही थी। क्लास में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ध्यान से सुन लेती थी, थोड़ा हार्डवर्क घर में आके उसका कर लिया, हाफ एन आवर 1 आवर का, एंड दैट्स इट। आई थिंक उसी से मतलब आई डिड नॉट डू एनीथिंग सो कॉल्ड यूनिक और डिफरेंट फॉर दैट। मतलब रेगुलर पढ़ाई करने से आप फर्स्ट आ सकते हो। बुज्जी नानी जो बिल्कुल। है वो पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, माफ कीजिएगा मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी फोटो दिख नहीं रही है, कि मैम प्लीज गिव सम सजेशन ऑन 12th बोर्ड एग्जाम। तो उनको यही जानना था कि आप 12th बोर्ड की तैयारी कैसे करती हैं। सिमी ने अभी आपको बताया कि उन्होंने रेगुलरली मंडे टेस्ट की पढ़ाई की, और रोज पढ़ने से आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो अच्छी ट्रू। छात्रा तो हमेशा से रही है, क्लास 3 से ही पेपर में फोटो छप रही है आपकी, है ना। अच्छा सिमी, अब हम ऐसा करते हैं, डीपीएस से निकल के आईआईटी बॉम्बे चलते हैं, जी ठीक है। हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ आईआईटी लाइफ, व्हाट चेंज यू एज अ पर्सन द मोस्ट। ओके, सो आई विल टेल यू फर्स्ट व्हाट वाज माय इमोशन एज इन गेटिंग इनटू आईआईटी। तो सीनियर से सुना था कि आईआईटी बॉम्बे इज द प्लेस टू बी, तो ये मैंने गांठ बांध ली थी कि कोई भी ब्रांच हो मैं आईआईटी बॉम्बे ही जाऊंगी। सो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 323 इन जेई एडवांस्ड, एंड वहां से मुझे मैकेनिकल 4 ईयर का डिग्री मिल रहा था आईआईटी बॉम्बे में। सो आई वॉज वेरी क्लियर, डिग्री मतलब ब्रांच ब्रांच ठीक है एक तरफ, आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। सो दैट वाज माय रिएक्शन एंड आई गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे। So then on, I think IIT Bombay was a place that really developed my personality. क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वी डोंट जस्ट स्टिक आवरसेल्व्स टू एकेडमिक्स, हम दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वी बिल्ड सो मेनी फ्रेंड्स, वी बिल्ड आवरसेल्व्स प्रोफेशनली, हम प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में आके हम अपना एक रिसर्च या जॉब प्रोफाइल भी बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक इट रियली हेल्प मी डेवलप माई एंटायर पर्सनैलिटी, विच ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन माई यूपीएससी का इंटरव्यू। सो उस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की मैंने। डांस, आई एम अ ट्रेन क्लासिकल डांसर इन ओडिसी, तो वहाँ डांस परफॉर्मेंसेस किए थे। आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल इन माई फर्स्ट ईयर एंड देन आई वॉज इन टू खो खो। तो फाइनल ईयर में आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई गर्ल्स खो खो टीम वहाँ पे। और जैसे रूरल विजिट्स वगैरह की काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट अमेरिका बिकॉज ऑफ अ स्कॉलरशिप दैट आई वॉन्ट इन एट आईआईटी बॉम्बे। सो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रही। इट वाज अ वेरी गुड, आई थिंक 4 इयर्स में मेरी पर्सनालिटी उभर के आ गई। वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे के मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, और जो बाकी आईआईटी बॉम्बे से नहीं पढ़े हैं, दूसरे नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़े, जैसे हम लोग, हमारी पर्सनालिटी में वो चीज नहीं है। तो मैं भिलाई और यूपीएससी की तैयार करने वाले लोग, और जो भी हमें देख रहे हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा लोग देखते हैं, उनको ये बताना चाहूंगी कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान दें। वो आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, जैसे सिमीकरण ने अभी कहा, और ये इंडोर्स कर रही है, तो इसको दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
आई थिंक मैम यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी दैट व्हेन वी फर्स्ट एंटर्ड इनटू आईआईटी बॉम्बे, हमारे फर्स्ट डायरेक्टर के, हमारे जो फर्स्ट सेशन में द डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, उन्होंने हमें कहा कि सी दीज को करिकुलर एक्टिविटीज विल बी लाइक जीरोस, द मोर देयर आर इट विल बी ग्रेट, बट योर academics is your one. So if you don't have a one in front of those zeros, it's absolutely meaningless. सो एक बैलेंस रखते हुए आप एक अपने टाइम, अपने शेड्यूल को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिवाइड कीजिए, और उस हिसाब से हर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। और आपके मल्टी टैलेंटेड होने का हमें बहुत लोगों ने, यहाँ पे आप बाद में चैट देखिएगा, आपको चैट नहीं दिखाई दे रही ना सिमी, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा क्योंकि हम आज आपसे सारे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं। एक चीज मुझे ये बताइए बिल्कुल कि ये बिल्कुल। जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, ये बच्चों को ऐसा क्या सिखाता है जो बाकी इंस्टीट्यूट्स जो ऑर्डिनरी कॉलेजेस है नहीं सिखाते हैं, अदर देन व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड अस? आई थिंक ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है आईआईटी बॉम्बे में, दैट दैट कोहेसिवनेस, दैट कल्चर जो एक बिल्ड हो जाता है, हर कॉलेज का अपना एक कल्चर है कहते हैं, तो आईआईटी बॉम्बे का जो एक कल्चर है कि आप जो भी एक्टिविटी परस्यू करना चाहते हैं उसमें आपको एक फुल सपोर्ट, एक सॉर्ट ऑफ ग्राउंड वर्क बिल्ड करके देता है। सो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो एंटरप्रेन्योरशिप में गए हैं वहां जाके, काफी फ्रेंड्स एनजीओ सेक्टर में गए हैं, काफी फ्रेंड्स हैव गॉन इनटू टेक्निकल रिसर्च कॉलेजेस, अदर्स हैव गॉन इनटू कंसल्टिंग। सो इतनी सारी जो डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज का जो एक पूरा फ्रेमवर्क है, वो मुझे लगता है आईआईटी बॉम्बे में बहुत अच्छा मिलता है, एंड दैट माइट बी समथिंग व्हिच मेक्स इट यूनिक। दैट्स वंडरफुल आंसर, वंडरफुली आंसर्ड सिमी, बिकॉज हमारे, मुझे लगता है क्योंकि मैं भी भिलाई से हूँ, एक छोटे शहर से हूँ, मेरी तो पैदाइश भी भिलाई की और पढ़ाई भी, तो मुझे लगता है हमें अपॉर्चुनिटीज अपने शहर में बढ़ाना चाहिए और जो भी हमने बाहर सीखा है वो आगे अपने भिलाइयंस को बताना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल। लोग सुन रहे हैं सिमी की आईआईटी की जर्नी। अच्छा ये बताइए, ये आपने आईआईटी का तो सारा आंसर दे दिया, तो मुझे ये क्वेश्चन सब आगे पूछना नहीं है। हम ऐसा करते हैं, अब यूपीएससी की तैयारी की तरफ चलते हैं, जी। ठीक है? तो अब सारे बच्चों से, स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आप सुनिए सिमी क्या कह रही है, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सिमी आज खुल के बात करने वाली है और हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया के थ्रू भेजे हैं वो यहाँ पे नाम के साथ पढ़ने वाले हैं। शिवम रायपुर से पूछ रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें मैम, प्लीज बताएं। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता अनीश पूछ रहे हैं भिलाई से, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? तो मैं ये जानना चाहती हूँ सिमी, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? ओके। सो बिकॉज ये सवाल ऑलरेडी आ ही गया है, ये मैं कुछ ऐसा चीज था जो मैं बताना चाहती थी सभी को। सो when did you start preparing, I think is a very difficult question to answer. हर इंसान का शुरुआत, हर इंसान का बेस अलग है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 11th-12th मैंने पीसीएम प्लस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया था। तो इकोनॉमिक्स में शुरुआत से ही इंटरेस्ट था, मेरे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे। इसके अलावा मैं बहुत सारे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ती हूँ, स्पेशली कॉलेज जाके मैंने काफी सारे नॉन फिक्शन बुक्स इंडिया रिलेटेड पढ़े हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की अंडरस्टैंडिंग इन जनरल अबाउट इट्स सोसाइटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप हो गई थी। एंड दिस वाज नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू यूपीएससी जो मैंने किया। आईआईटी बॉम्बे में आपके पास एक ऑप्शन होता है माइनर करने का, तो मैंने माइनर किया था ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में। तो इसमें भी मैंने काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स किए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, जो टेक्निकल बच्चे प्रोबेबली नहीं करते हैं। तो इन सभी रीजंस की वजह से मेरा एक बेस जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो चुका था। नाउ कमिंग टू एक्चुअल प्रेपरेशन, लाइक आई सेड अर्लियर, मैंने फाइनल ईयर में ही डिसाइड किया था कि आई विल नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स, मैं पूरी तरह से प्रेपरेशन में लग जाऊंगी। सो फाइनल ईयर मैंने पूरा टाइम डिवोट किया यूपीएससी के प्रेपरेशन के लिए। सीरियसली, मतलब मोर देन लाइक 6 to 8 hours ऑफ स्टडी मैं लास्ट सेमेस्टर में दे पाई, क्योंकि हम क्या करते हैं काफी सारे कोर्सेज पहले खत्म कर लेते हैं, तो हमारे पास काफी सारा फ्री टाइम आखिरी सेमेस्टर में बच जाता है। तो उसका मैंने 100%, इनफैक्ट 200% यूटिलाइजेशन किया था। जो क्लासेस के बीच का हाफ एन आवर होता है वो भी यूज किया था। न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी मोबाइल में, नोट्स बनाती रहती थी, रिवाइज करती रहती थी। सो ये होता है ना कि आप टाइम निकाल के बना रहे हैं पढ़ने के लिए, उस तरह से मैंने प्रिपरेशन की। सो टू एनीवन हु इज आस्किंग कि प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, आई थिंक यू हैव टू डिसाइड कब शुरू करें फर्स्टली। सेकेंडली,
डाइविंग इनटू द प्रेपरेशन, सीधा आंख बंद करके बुक पढ़ना चालू करने से पहले आप थोड़े टॉपर्स वीडियोस देखिए, आप थोड़े न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बढ़ाइए, आप अपना ऑप्शनल रिसर्च कर लीजिए कि आपको क्या लेना है। ये चीजें जब आप कर लेते हैं, आपकी फंडामेंटल्स, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये बुक्स पढ़नी है, एंड बस स्टिक टू द सोर्सेज एंड प्रिपेयर। सो आई थिंक दैट्स इट। That's wonderfully said. Reading habit takes you a long way. जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो किताबों के रिकमेंडेशंस भी देते हैं, तो आपने ये बहुत अच्छा किया स्पेसिफाई करके कि नॉन फिक्शन ही पढ़ना है, नॉवेल्स उठा के नहीं पढ़ना है। नॉन फिक्शन किताबें सच्चाई बेस्ड होती हैं। आई है थिंक ना? आप नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, आप फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, मॉरल्स पता चलने चाहिए उनसे। जैसे कि बहुत सिंपल, आप जातका टेल्स पढ़िए, आप पंचतंत्र पढ़िए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आगे चल के जब आप एक ऐसे लिख रहे होंगे, उस कहानी की शुरुआत आप एक जातका टेल से कर सकते हैं। आप नहीं तो सुधा मूर्ति जी की बुक्स पढ़िए, आई थिंक शी इज माई रोल मॉडल, सो आई एम लिटिल टू बायस्ड टुवर्ड्स हर, ओ वाओ, बट लवली। उनकी बुक्स, हर बुक्स आर अ वेरी मोटिवेशनल, दे आर वेरी ग्राउंडेड इन रियलिटी, एंड बहुत सारी वैल्यूज टीच करती हैं। आप वैसे बुक्स ढूंढिए। एंड आपको बुक्स की अगर रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं ब्लॉग पे, मैंने मीडियम पे एक ब्लॉग बनाया है जिसमें आई बी डेफिनेटली पुटिंग अप न्यू रिकमेंडेशन जो मैं जैसे पढ़ती जाऊंगी, सो यू कैन सी दैट एज वेल। दैट इज वेरी वेरी गुड। आई वांटेड टू आस्क यू कि आपसे लोग कहाँ टच बेस करें, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस कह रहे हैं कि सिमीकरण का फैन पेज कब बनेगा। तो आप एक फेसबुक पे अपना पेज जरूर बनाएं, जी और बिल्कुल। आप लोग सिमीकरण का मीडियम में ब्लॉग है वो, उसको वहां पे अब इसी चैट में नीचे आप लिंक डाल दीजिएगा, तो ये सब लोग जो यहाँ पे जी चैट कर रहे हैं और जो देखेंगे उनको मिल बिल्कुल। जाएगा। तो आपकी किताब की पढ़ाई और शुरुआत हो गई है ना? अब मुझे ये बताइए कि ये शिवा हैं जो धमतरी कुरुद से पूछ रहे हैं, एंड सभी सब्जेक्ट को कितना और कैसे पढ़ना है, एंड हाउ टू लर्न इफेक्टिवली। मैडम मस्ट शेयर योर ब्लूप्रिंट्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फ्रॉम गजपाल दुर्ग। तो सिमी ये करो कि what is your strategy that you followed for UPSC CSC, अब वो आप उसको ब्लूप्रिंट कैसे भी आप समझा दो ताकि ये बच्चे समझ ले जो यहाँ पे देखेंगे वीडियो को भी बाद में। ठीक है। सो पहली बात तो सबकी ब्लूप्रिंट अलग होगी। देयर इज नो फिक्स्ड ऐसे एक छांचा नहीं है जिसमें से आपको गुजरना है और आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। एवरीवन हैज अ डिफरेंट जर्नी, आपकी जर्नी अलग होगी, ये आप पहले गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात ये है कि कमिंग टू माय स्ट्रैटेजी, मेरे पास समय की कमी थी बिकॉज फाइनली हमने प्रिपेयर किया, तो मेरे को हमेशा ऐसे चाहिए थे जो कंसाइज, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, एकदम लिमिटेड सोर्सेस, एक दो किताबें हर टॉपिक का, उससे ज्यादा नहीं, जिसमें चाहिए नोट्स बना लिया, जिसमें चाहिए उसी में अंडरलाइन कर लिया, उस तरह से आगे बढ़ी मैं। काफी हेल्प मुझे मिला था टॉपर्स वीडियो से, सो आई वुड रेकमेंड एवरीवन, आप प्लीज जाइए, सभी टॉपर्स के वीडियोस होते हैं फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप बस टॉपर का नाम लिखिए, यूपीएससी टाइप कीजिए और आपको मिल जाएगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, उन्होंने क्या क्या बुक्स रेकमेंड किए हैं। अभी अगर मैं बुक्स डिटेल में जाऊं तो ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो मैं आपको ओवरऑल बता दे रही हूँ। दूसरी चीज जो आप कीजिए इज प्लानिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी है, आप सिंपली एक बुक उठा के पढ़ना मत शुरू कीजिए। आप जब आप जानते हैं कि 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं, तो आप सोच लीजिए कि हर जनरल स्टडीज के पेपर को आप कितना समय देंगे। मैंने जीएस 2 एंड 3 को ज्यादा समय दिया, तो उस हिसाब से जैसे सपोज मैंने उनको 2 या 2 मंथ दे दिया, बाकियों को 1 मंथ दिया। तो ये जब मेरा क्लियर हो गया, फिर 1 मंथ को मैं उसको किस तरह से डिवाइड करूंगी अपने सब सेक्शंस में, फिर मैं डेली का क्या शेड्यूल रखूंगी, फिर मैं घंटे भर में भी कितना प्रिपेयर करूंगी, मैं उस माइक्रो लेवल तक भी प्लानिंग कर लेती थी। तो आपको जिस भी लेवल तक कंफर्टेबल है, आप प्लीज विजन के साथ एक चलिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सही समय पे सही चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। बाकी आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन आप बहुत ही हाई मोमेंटम में पढ़ ली और 5वें दिन आप बोल रहे बस हो गया, अब हमको तो रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट मोमेंटम में पढ़ाई करनी है। कितने घंटे पढ़ने हैं आपके ऊपर है, बट एक कंसिस्टेंट मोमेंटम बनाए रखना है, कंटिन्यूअस रिविजन करते रहना है, और बस आई थिंक आप यू आर गुड टू गो। वेरी गुड। ये क्वेश्चन लोग पूछ भी रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ना है, आपने उसको पहले ही आंसर कर दिया। तो कोई ऐसा डेली रूटीन आप फॉलो करती हैं जिससे बच्चों को थोड़ा, क्या होता है जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो हमें समझ नहीं जी आता कि हम कहाँ से शुरू करें। तो एक रफ डेली रूटीन बता दीजिए, क्योंकि डेली रूटीन बनाना एक हाउसवाइफ के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है।
तो आप अपना जो डेली रूटीन आपने फॉलो किया वो बता दीजिए, बाकी अपना रूटीन सबको खुद बनाना पड़ेगा। जी। सो डेली रूटीन आए तो आई थिंक इट डिफर्ड अ लॉट, क्योंकि प्रीलिम्स के वक़्त मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज में अगर जैसे भी क्लासेस थे, उनके बीच में आधा घंटा भी अगर मिलता था, तो वो भी मैं यूज़ करती थी। उसके अलावा दोपहर का समय काफ़ी अच्छे से यूज़ करती थी एंड शाम का समय। शाम को थोड़ा खेलना-कूदना रहता था मेरा कॉलेज टाइम पे, तो उसके बाद आके सीरियसली बैठ गई, रात तक प्रिपेयर किया। सो यूजुअली दोपहर और शाम का टाइम मुझे काफ़ी अच्छे से मिल जाता था। सुबह टाइम पे थोड़े क्लासेस रहते थे, उनको मैनेज करते हुए मैं करती थी। बट जैसे मैंने कहा, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलती रहती थी। इसके अलावा थोड़ा अगर जॉगिंग-वॉगिंग हो सके, वो करती थी। एंड जब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो गया पढ़ाई का, तो जैसे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देख लिया, बट आई वाज़ मेकिंग 100% श्योर कि ऐसा कुछ नहीं देखूँ जिसमें 4-5 घंटे चले जाएँ या बिंज वॉचिंग हो जाए, वैसा ना हो, वो ध्यान में ओके। रखा था। उसके अलावा इफ आई से ओवरऑल कितने घंटे पढ़ती थी, शुरू-शुरू में 6 से 8 घंटे पढ़ती थी, उसके बाद बढ़ते-बढ़ते 10 से 12 घंटे तो पहुँच ही गया था। स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे मुझे लगता है आपको नंबर ऑफ आवर्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अम, अभी आपको बहुत सारा चीज़ एक बहुत कम समय में याद करना है और आपको रिटेन करना है। तो आप जितना ज़्यादा बार उनको पढ़ के रिवाइज़ करेंगे, उतना आपको बेनिफिशियल होगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना एक अलग शेड्यूल बना सकते हैं, बट अगर आपके पास पूरा का पूरा समय इस प्रिपरेशन के लिए है, तो आप 10 से 12 घंटे उस समय में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात। आप ना क्वेश्चंस जो आप बता रही हैं उसमें कई क्वेश्चंस कवर होते जा रहे हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सवाल उनके बारे में नहीं पूछना पड़ रहा। लेकिन एक बात बताइए, कुछ वीडियोस आपसे एक सवाल पूछने के लिए मैंने भी देखे थे टॉपर्स के, तो वो बड़ा एम्फेसिस डालते हैं ऐसे राइटिंग पे। तो ये ऐसे जी, राइटिंग, और वो इस बात पे भी एम्फेसिस डालते हैं कि दिन में आप एक बार कम से कम या 2 बार टेस्ट पेपर्स करिए। तो ये पेपर्स जी। कहाँ से मिलेंगे, इनको करें और फिर चेक कैसे करें, उस पे आप कुछ गाइड करिए बच्चों को ऐसे राइटिंग पे। सो टेस्ट पेपर्स करने का पर्पस ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो अगर आप टेस्ट पेपर्स में डिसेंटली अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं। बट अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि देखिए ये वीक एरियाज में मेरे को मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको रिविजन ज्यादा करना है, उसकी प्रिपरेशन और थोड़ी करनी है। तो अभी टेस्ट पेपर्स के लिए प्रीलिम्स में मैंने सिंपली जो मेजर वो है कोचिंग साइट्स हैं, जैसे कि इनसाइट हो गया या विजन आईएएस हो गया या वाजिर हो गया, उनके टेस्ट पेपर्स मार्केट में मिलते हैं। तो आई डिड नॉट जॉइन एनी टेस्ट सीरीज प्रिंट्स के लिए। मैंने सिंपली वो प्रिंट आउट्स को घर ले आया था, उनका टेस्ट प्रैक्टिस। और जो बच्चे दिल्ली में नहीं रहे हैं और उनको ये टेंशन हो रहा है कि वो कैसे ढूंढे, तो बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं दिल्ली में ही, जैसे कि इमेज रनर हो गया या फिर केबीसी हो गया, जो आपको पूरा का पूरा कुरियर कर देते हैं, तो आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप उनको घर ले आइए। पूरा पर एग्जाम का एनवायरनमेंट, मतलब 2 घंटे है तो 2 घंटे देते हुए एग्जाम को कीजिए। फिर उसकी मैं खुद ही चेकिंग कर लेती थी। कमिंग टू मेंस, मेंस में मैंने सीरीज ज्वाइन किया था, विजन आईएएस का ज्वाइन किया था फॉर एसे एंड एज वेल एज जनरल स्टडीज। तो वैसे आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक विजन आईएएस इज गुड। एंड उसमें आप जो आपको उनकी तरफ से एक फीडबैक मिलता है, एक अपना एक फीडबैक रहेगा ही, आपको पता है कि आपने किस तरह प्रिपेयर किया है। और आप अपने दोस्तों या सीनियर या कोई भी फ्रेंड्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो आई थिंक इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अगर हम आए, ऐसे समथिंग मैं जो सबको बोलूंगी, थोड़ा लेट चालू कीजिए। आप पहले आप अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर लीजिए, उनकी आंसर राइटिंग कर लीजिए। इसकी वजह से आपके पास बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल हो जाएगा, जो आप अपने एसेज में यूज कर पाएंगे। उसके अलावा थोड़ा एसेज की इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, ये आप पहले से सोच के जा सकते हैं। और वहां पे एक कहानी की तरह कहीं ना कहीं बुनते हुए, ना कि बस आप पॉइंट्स फेंक रहे हैं, उस तरह नहीं लिखते हुए, कहानी की तरह बुनते हुए उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ कोट्स, बड़े फेमस लोगों के एग्जाम्पल्स, सिविल सर्वेंट्स के अगर एग्जाम्पल्स है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, कहीं पे कोई अच्छी काम हुई है तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपने बहुत काम की बात बता दी है। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने नोट्स का बताया, ऐसे का,
तो जनरल स्टडीज के लिए तो आपको न्यूज़पेपर्स और इन सब चीजों के टच में रहना पड़ेगा। तो जैसे पेपर से आप कोई आर्टिकल पढ़ के नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं गोपाल पटेल जी। जी, सो न्यूज़पेपर रीडिंग आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को लेते हुए। कुछ लोग सिंपली मंथली कंपाइलेशंस पढ़ लेते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, आपकी एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हो रही है, आप चीज़ों के बारे में एक ओपिनियन डेवलप कर रहे हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी रिटन इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, आपको काफ़ी सारे नए-नए शब्द मिल जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। दूसरी बात कैसे पढ़ें, तो मेरा पर्सनल ये प्रेफरेंस था कि मैं द हिंदू को ई पेपर मोड में पढ़ती थी। उसका एक ई पेपर सब्सक्रिप्शन है, उसको मैंने ले लिया था। उसमें साइड में हेडिंग्स आ जाते हैं हर आर्टिकल के, तो मैंने आर्टिकल में से सिलेबस के हिसाब से क्या रेलेवेंट है उन आर्टिकल्स को छांट के पढ़ लिया। बाकी कमिंग टू एडिटोरियल्स, जब मैं एडिटोरियल पढ़ती थी, क्या होता है कि पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजुअली जो नीचे का सेक्शन होता है वहां पे आपके रिकमेंडेशंस होते हैं या कोई क्रिटिसिज्म अगर है तो वो वहां पे होता है। तो मैं बहुत फास्ट फास्ट रीडिंग करती थी, ये आपकी हैबिट के साथ ही आएगी। फास्ट फास्ट रीडिंग करते हुए जाती थी, सीधा उस पॉइंट पे पहुंचती थी जहां मुझे कुछ रेलेवेंट मिले, एंड फिर उसमें से मैं कुछ छोटे मोटे नोट्स बना लेती थी। बहुत ज्यादा मैं नोट्स बनाने पे भी फोकस नहीं करती थी, क्योंकि एनी हाउ ये आप मंथली मैगजीन आप हमेशा कोई ना कोई पढ़ते ही हैं, उसमें भी वो कवर हो जाते हैं। सो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स 30 टू 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बना ली थी। तो ये यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं न्यूज़पेपर का जो आपने दे दिया है। कुछ पूछ रहे हैं क्या दिल्ली जाके तैयारी करना जरूरी है, और कुछ पूछ रहे हैं कि कोचिंग सेंटर को सेलेक्ट करने के लिए क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी, तो आई थिंक दिल्ली जाने की तो बिल्कुल भी जरूरी, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम है। अगर आप जो वर्किंग है तो आप अपना जॉब छोड़ के दिल्ली नहीं जा सकते, या अगर आप एक स्टूडेंट है, जैसे प्रीलिम स्टेज में मैं दिल्ली पे नहीं थी, मैं खुद से कॉलेज में ही रह के पढ़ाई प्रिपरेशन की थी। सो आपके कंफर्ट लेवल आपको क्या सूट करता है उस से आपको डिसाइड करना है। एंड एनी हाउ जो भी कोचिंग मटेरियल आजकल अवेलेबल है मार्केट में, उसका ऑनलाइन क्लासेस तो होता ही है, तो जो भी ऑफलाइन बच्चों को मिल वो देख सकते हैं। तो उसकी मतलब मटेरियल नॉलेज ज्ञान उसके पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस नहीं बनाने वाला, वो सिर्फ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड। अब कमिंग टू कोचिंग, अगेन कोचिंग की रिक्वायरमेंट आपको किस हद उस पर डिपेंड कर। जैसे मुझे क्लियर था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं करनी है। अब मैं नहीं बैठ सकती और सुन सकती किसी को हिस्ट्री 2 घंटे बोलते हुए, मेरे को लगता था वो चीज। तो मैंने वो चीज क्लियरली ऑप्ट आउट कर ली थी, तो कोई कोर्स टाइप का मैंने कोचिंग नहीं किया। दूसरी बात, आप थोड़े सीनियर पूछिए, ऐसे लोगों से पूछिए जो वो कोचिंग में गए हैं, या आप सिंपली कोरा पे सर्च, सबसे बेस्ट है कोरा पे। किसी ना किसी ने हर कोचिंग का फीडबैक देता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ गुड दैट कोचिंग इज। थोड़ा जेन्युइन फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से जो मे बी क्वालिफाई किए हैं, वैसे तो आपको बेटर आइडिया होगा। वो फीडबैक लेने के बाद ही आप वो कोचिंग ज्वाइन करने का डिसाइड कीजिए। आप अपने वीक पॉइंट कीजिए, कि जैसे कि मेरे को लगा कि मुझे GS3 के लिए चाहिए, फिर करंट अफेयर्स के लिए चाहिए, तो क्लास ले, आपकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से ज्वाइन, एंड ये सभी का ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है, तो आप सिंपली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई खास एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिमी जी कह रही हैं सब ऑनलाइन अवेलेबल है। विभूति जी अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा पोस्ट कर दीजिए, हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं ऊपर तो हम नहीं देख पाएंगे। सिमी एक बात बताइए, मेंस में आपका ऑप्शनल पेपर जो था वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था, डिस्पाइट कि आप आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रही थी। तो आप कैसे गाइड करेंगी बाकी लोगों को, क्योंकि जो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो नॉर्मली आप उसी सब्जेक्ट को दोबारा एग्जाम देना पसंद करते हो, तो आपने अलग स्ट्रीम का लिया। बच्चों कैसे सेलेक्ट करें कि उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए? मैम आप क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आप रिपीट कर हाँ, सकते हैं? how do you guide others to choose the desired optional subject? Because you chose political science and international relations despite studying in IIT Bombay, right? सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चॉइस है सबसे पहले तो, क्योंकि 500 आपका ऑप्शन रहा है,
एंड इसमें आप बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू, ये एक अच्छे की बात जरूरी है। अब कमिंग टू व्हाई डिड नॉट चूजिंग, आपने सबको क्लैरिफाई, ये नहीं करना चाहती कि इंजीनियरिंग आप ना चुने, बट ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बताना चाहती हूँ। फर्स्टली ये है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का सिलेबस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू आर्ट्स ऑप्शनल। एट IIT बॉम्बे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा पढ़ा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट, तो वो सेक्शन मुझे खुद से एनी हाउ कवर करना ही पड़ता। ये था कि मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसका जनरल स्टडीज के साथ थोड़ा ओवर, क्योंकि मेरे पास समय कम था, प्रिपेयर बहुत सारा करना था। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट रही इन डिसाइड दैट सिमी की लगता है वाईफाई की समस्या आ गई है। सिमी, आपको लास्ट की 2 लाइन रिपीट करनी पड़ेंगी। जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया, दैट वाज माय इंटरेस्ट। मैंने उसका सिलेबस देखा, मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने उसका सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, इवन कुछ टॉपर्स की कॉपीज देखी थी। इससे मुझे पता चल गया कि मेरा अच्छा खासा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं इसे 2-3 साल भी पढ़ सकती हूँ अगर रिक्वायर्ड हुआ। सो आई चूज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आप अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखें। और एक चीज जो मुझे इस ऑप्शनल को डिसाइड करने में was taking the feedback from seniors who take optional teaching. तो इस तरह से मैंने मेरे को इकोनॉमिक्स बीच में कंसिडर किया था, तो मैंने अपने प्रोफेसर को दिखाया, उन्होंने इसमें बहुत सारी थियोरी है जो आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगी एंड आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो मैंने साइड कर दिया। फिर फाइनली आई हैड कम डाउन टू PSIR। अब इसमें मैंने एक सीनियर ऐसा ढूंढा जो मैंने कि देयर वाज अ सीनियर जिन्होंने केमिस्ट्री से PSIR में स्विच किया था, अपने उन्होंने क्लियर किया था। एंड नॉट जस्ट टू डिस्करेज एनीवन, बट मैंने फिर उनको ऐसे मैसेज डाल दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रिप्लाई करेंगे, बट रिप्लाई, उन्होंने मुझे पेशेंटली समझा भी दिया कि क्यों उन्होंने स्विच किया और क्या उससे उनको बेनिफिट हुआ। उसी के बाद मैंने कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर लिया। अच्छा सिमी, आपका कनेक्शन थोड़ा सा ढीला चल रहा है। एक बात हाँ या नहीं में बताइए कि NTSC की प्रिपरेशन से UPSC के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, हाँ या नहीं? वाईफाई थोड़ा डगमगा रहा है। सिमी, सवाल सुना? क्या आप रिपीट कर? हाँ श्योर। NTSC के जो प्रिपरेशन करते हैं उससे UPSC में कुछ फायदा पहुंचता है? ये गौरव साहू पूछ रहे हैं। आई थिंक NTSC की प्रिपरेशन में एक्चुअली फायदा हुआ, क्योंकि उससे पहले मैंने इतने डिटेल में कभी सोशल साइंस पढ़ा ही नहीं था। उस समय मैंने काफी एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ याद था, ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें याद थी, पर बट मुझे ये समझ पता था थी। कि मेरी क्लैरिटी काफी अच्छी आ गई थी, मुझे हिस्ट्री का नॉलेज समझ था एग्जैक्टली exactly, और वो समझ मुझे अपने एक्चुअल एग्जाम में हेल्प किया। सो यस, NTSC की प्रिपरेशन डज हेल्प। एक निहित सोनी का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हाउ टू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स फॉर द मेंस एग्जाम? कैन यू रिपीट? हाउ टू प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग? जी, सो एक और चीज मैं जो NTSC वाले पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि NTSC में आप मैथ की तैयारी करते हैं, तो मैथ में आप लॉजिकल रीजनिंग आपकी काफी स्ट्रांग हो जाती है। एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर प्रीलिम्स में CSAT का है, एंड वहां भी ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल होते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है। नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग, आई थिंक आंसर राइटिंग एक बहुत ही जरूरी चीज है, काफी नेग्लेक्टेड है बट बहुत ही जरूरी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाई। अब मैं अभी भी बोलना चाहूंगी सभी को कि कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज बाकी एस्पिरेंट्स या बाकी जो टॉपर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनसे डेफिनेट है, बिकॉज मैं लिमिटेड सोर्सेस पढ़ पाई, समय कम था, बट मैंने जो भी पढ़ा उसको मैं बहुत ही सही तरीके से आंसर कॉपी में प्रेजेंट कर पाई।
ये उसको सवाल मैं भी यूज आपसे कर पाई, पूछना चाहती वो हूँ। चीज मैंने अपने आप आंसर प्लीज राइटिंग स्किल्स के थ्रू डेवलप की, एंड इसलिए मैं क्वालिफाई कर पाई। आंसर राइटिंग में सो कुछ खास अभी लिखना आंसर होता है? राइटिंग के लिए अगर हम बात करें, नहीं, आपको लिखना वही होता है और उसको आपको एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कुछ थोड़ा वैल्यू एडिशन करते हुए, ये है एक गुड आंसर इन एक एवरेज आंसर के बीच का डिफरेंस। एक स्ट्रक्चर अच्छा होता है, आपके पास इंट्रोडक्शन होता है, आपके पास हेडिंग्स होते हैं, आपके पॉइंट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखे होते हैं, और एक कंक्लूजन होता है। एक एवरेज आंसर में कहीं ना कहीं ये चीजें मिसिंग हो सकती हैं, और अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आपके पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं एवरेज आंसर में। अब अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं, तो आपको सबसे पहले तो आपके मन से ये फियर हटाना है कि कभी ना कभी मेरे पास नॉलेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं एक परफेक्ट लिख सकूं। इस एग्जाम में देर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट आंसर, एवरीथिंग गेट्स बेटर एंड बेटर। धैर्य से वॉच करिए इंटरव्यू, पेशेंस रखिए। वाईफाई का खेल है दोस्तों, इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग वाईफाई पे हैं। तो सिमी वापस आ गई हैं, आप अपना कंटिन्यू करिए आंसर राइटिंग का। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द पुअर नेटवर्क कनेक्शन, ये बहुत दिक्कत चल रही है कुछ दिनों से यहाँ पे, और बारिश की वजह से शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और बढ़ गई है। सो कमिंग टू आंसर राइटिंग, आप रात को एक दो सवाल शुरू शुरू में खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनसाइट्स वेबसाइट पे चले जाइए, आईएएस बाबा, सबसे अच्छा सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उन्हीं का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप टॉपर्स आंसर कॉपीज देखिए, उनकी आंसर स्टाइल देखिए। आई थिंक आपको कुछ अगर आप अगर उनका भी अप्लाई कर पाए तो आप बहुत ही अच्छा स्टार्ट कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आप कुछ चीजें आपकी आंसर को यूनिक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कि डायग्राम्स, मैप्स बहुत अच्छे से यूज कीजिए, फ्लो चाहिए, आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे कोट कर सकते हैं, केस स्टडीज डाल सकते हैं, और ये सबसे आपका आंसर थोड़ा और एनरिच हो जाएगा और दूसरों से स्टैंड आउट करेगा। आप एआरसी जैसे कमीशन यूज कर सकते हैं, सरकारिया, पुंची के रिकमेंडेशंस आप अलग से लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये आपकी वैल्यू एडिशन होगी और ये आपके आंसर को और यूनिक बनाएगा। कोई खास किताबें पढ़नी नहीं पड़ती है प्रिया जी? अभी सिमी यही तो बता रही हैं कि पढ़ाई कभी से शुरू हो चुकी थी उनकी, नॉन फिक्शन के जमाने से। और फिर भी सिमी आप इनका आंसर जरूर करें, इन्होंने बहुत बार टाइप किया है। हाउ डू आई चूज बुक्स इफ द बिगिनर्स फाइंड एवरीथिंग न्यू? व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस टॉपिक? ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो आप उठाइए, वो आपके सबसे बेसिक बुक्स हैं। आप एनसीईआरटीज पढ़िए, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है आप 2-3 बार पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं उसमें, तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक्स पे जा सकते हैं, जो हम बेसिक बुक्स कहते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, शंकर आईएएस हो गया, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। फिर उसमें जब आप कंफर्टेबल हो गए हैं, फिर आप थोड़े कोचिंग वगैरह के नोट्स, आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मटेरियल सब मार्केट में अवेलेबल होता है, आप सिंपली वो नोट्स को उठा के आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, फिर बेसिक बुक्स कीजिए, एंड फिर आप अपना थोड़ा और एडवांस मटेरियल यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल फिर से बाहर से आया हुआ है सोशल मीडिया के जरिए। मैम, मेरी समस्या ये है कि मैं प्री और मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढूं? चूंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं, अतः मेरी बुक्स के चुनाव में कठिनाई हो रही है। बेस्ट बुक सजेस्ट करें, ये आजाद गुप्ता ने पूछा है। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, यूपीएससी में हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में क्या फर्क पड़ता है? क्या इंग्लिश मीडियम से परीक्षा अधिक सरल हो जाती है? हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ विशेष सलाह दीजिए, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में आपने देखा है 316 नंबर पे पहला रैंक आया है हिंदी मीडियम वाले बच्चे का। और इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को गाइड करिए थोड़ा। जी, एक तो मटेरियल अगर कहा जाए, तो इसमें शायद कहीं ना कहीं नॉट द करेक्ट पर्सन पूछने के लिए, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम की रही हूँ। मुझे पता है जो बेसिक बुक्स हैं उनका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसमें शायद मैं कहीं ना कहीं सही पर्सन नहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए।
तो आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किए हैं उनसे अगर आप इस बात की सलाह लें तो वो बहुत ही बेटर होगा आप सभी के लिए। कमिंग टू क्यों हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में डिफरेंस होता है, एक चीज जो मैंने देखा है कि मोस्ट कोचिंग मटेरियल या जो भी गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में ज्यादातर अवेलेबल है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस। यही जो गाइडेंस है या जो कोचिंग का मटेरियल है, बिकॉज वो शायद हिंदी मीडियम में ना अवेलेबल हो, इसकी वजह से बच्चों को ज्यादा समय स्पेंड करना पड़ता है सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, या ज्यादा समय स्पेंड करना पड़ रहा है चीजों को छांटने के लिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अब कमिंग टू क्या यूपीएससी हिंदी की तरफ अगेंस्ट बायस्ड है या ऐसा कुछ, आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि अगर 10% बच्चे, अगर 1% बच्चे भी यूपीएससी की एग्जाम में हिंदी मीडियम से आ रहे हैं तो आप खुद को इतना सक्षम बनाएं कि आप उस 1% बच्चों में हो। और अगर वाह वाह। आप खुद को इतना सक्षम बनाएं कि 1% नहीं कल को 10% बच्चे आए हैं, ये सवाल बार बार पूछने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस यू मेक योरसेल्फ केपेबल इनफ कि आप उस लिस्ट में नाम ला सकें और आप फ्यूचर में ऐसे बच्चों को गाइड कर सके जो हिंदी मीडियम से आते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा rather than asking this question over and over again। बहुत अच्छी बात कही है। हिंदी भी अच्छे से पढ़ें और इंग्लिश को थोड़ा सा सीखना शुरू करें, क्वेश्चंस उसमें पढ़ें तो आप आंसर भी कर पाएंगे। अपनी इंग्लिश के लेवल को बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहिए। हम सब हिंदी बोलते थे एक जमाने में, अब अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताइए सिमी, कि इंटरव्यू इज कंसिडर्ड मोर डिफिकल्ट देन रिटन एग्जाम। कैन यू शेयर द क्वेश्चंस यू वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू? दिस इज फ्रॉम समीर सिन्हा. But the question I think you should tell us is important points to keep in mind while preparing for interview. Okay. So इंटरव्यू मोस्ट डिफिकल्ट है या नहीं, ये हर पार्टिसिपेंट का, हर पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होता है। कुछ लोगों को प्रीलिम्स बहुत टफ लगता है, जैसे पर्सनली मुझे प्रीलिम्स सबसे टफ लगता है, और इंटरव्यू शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम टफ लगता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है। नाउ कमिंग टू क्या मैंने यूपीएससी इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन के वक्त ध्यान रखा था। जो जब आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसमें आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, आपका स्कूलिंग का हुआ है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनानी होती है। एंड ये चीज सारे इंटरव्यूअर्स के सामने होता है, सो उनको आपका सारा डिटेल मालूम है एंड हर वर्ड जो आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैंने रूरल विजिट लिखा है तो कल में रिलेट करते हुए भी हॉबी को आपको कहीं ना कहीं चलना होता है, उस लेवल तक का डिटेल प्रिपेयर करना है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एक चीज ये था जिसको मैंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा। उड़ीसा क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना था, तो उड़ीसा की सारी डिटेल्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वैसे ही छत्तीसगढ़ की सारी डिटेल्स, फिर मेरे जो हॉबीज थी उनकी सारी डिटेल्स, मेरे अचीवमेंट, सबको मैंने डिटेल तरीके से प्रिपेयर किया। इसके अलावा करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में डेली पढ़ती रहती थी। कुछ चीजें जो मैंने ध्यान में रखी, पहला ये था कि मैं बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजों के पीछे नहीं भागती थी। दिस इज नॉट योर नॉलेज टेस्ट। यूपीएससी इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहता है, तो ये आपका पर्सनालिटी जानना चाहते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो है कि कोई भी जो मेजर मुद्दा या इश्यू न्यूज में है, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप किस तरह से उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव अपना पुट करते हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो चीजों को एनालाइज कीजिए, चीजों के बारे में एक ओपिनियन बिल्ड कीजिए, इस पे ध्यान रखिए। तीसरा जो चीज मैंने ध्यान में रखा था वो ये था कि सॉल्यूशंस। आप कल को एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, कल को आप कोई भी सिविल सर्वेंट बने, आपके सामने चैलेंजेस आएंगी, आप उनको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही एक सिंपल तरीका होना चाहिए। आप कुछ एकदम आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर सकते। आपको जो लीगल बाउंड्रीज हैं, जो एथिकल बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर रहते हुए एक सोल्यूशन निकालना है। तो आप खुद से ऐसे सवाल कीजिए, अगर मैं कोई एक चैलेंज इस एरिया में देख रहा हूँ, भले वो कचड़े का क्यों ना हो, इतने साल से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, वो क्यों नहीं हो रहा है और आप क्या करें इसके बारे में। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनोवेटिव इंडिजिनस सोल्यूशंस थोड़ा आप लाने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने एक चीज किया था वो ये था कि मेरे जो आज तक के जितने एक्सपीरियंस रहे हैं, जैसे कि मैं एक रूरल विजिट पे गई थी, झाबुआ मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। उसके अलावा मैं जापान गई थी, उसके अलावा मैं अमेरिका गई थी। तो इन सारे एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या चीजें सीखी, वो चीज मैंने बहुत ही अच्छे से नोट डाउन किया, क्योंकि अब जो मैं जवाब दूंगी वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे लिए यूनिक हो। उस तरह से आप अपने जवाबों को यूनिक कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के वक्त इंटरव्यू की ध्यान रखी। बहुत अच्छी बात है कि अब आप इतने इतनी कम उम्र में आप में ये मेच्योरिटी देख के ना बड़ा मजा आ रहा है। सिमी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने लोग चैट पे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 मिनट के बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस दोबारा पोस्ट कीजिए, क्योंकि हम स्क्रॉल करके ऊपर जाके क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो रिले हो रहा है ये स्ट्रीम यार्ड के जरिए हो रहा है। अच्छा सिमी, next question is, in the path of UPSC preparation, what was your lowest point? What was your coping mechanism and what kept you going? This was asked by Ananya Avasthi from New Delhi. आई थिंक अनन्या, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हर इंसान की इस जर्नी में ऐसे तो लो पॉइंट्स डेफिनेटली आते हैं। अब देर आर मोमेंट्स जब आप अपने आप की कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप इतने सक्षम हैं। जैसे कि मेरे मन में हमेशा शुरुआत में ये रहता था कि यार मैं तो पहली बार अटेम्प्ट दे रही हूँ, मेरे पास उतना गाइडेंस भी नहीं है, कॉलेज से रह के मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत सीनियर से बात की थी, बट एक माहौल नहीं था मेरे पास, और मेरा नॉलेज भी उतना नहीं है। तो क्या मैं ऐसे बच्चों के साथ compete कर सकती हूँ जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं? तो मेरे हमेशा मन में क्वेश्चन मार्क रहता था, और मैं खुद को इनकेपेबल समझती थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने प्रोवाइड किया, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट लोएस्ट पॉइंट्स वॉज इटसेल्फ इन द मेंस एग्जाम। सो मेंस एग्जाम में क्या Oh, होता है, पहले दिन फ्राइडे को आप एक essay लिखते हैं, फिर सैटरडे को GS 1 and 2 का पेपर रहता है, और संडे को GS 3 and 4। सो इट्स लाइक अ बहुत ही matter. ज्यादा एक बहुत ही हेक्टिक मैराथन टाइप का लगता है। एंड दीज आर लाइक द लास्ट मोमेंट्स ऑफ दिस मैराथन, जहाँ पे आपको अपना 100% देना है। तो आई रिमेम्बर जिस दिन लास्ट दिन था संडे को, GS 3 दे के आने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग। रूम पे आके मैं रोना चालू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा GS 2 and 3 बर्बाद हो चुका है, एंड इस हद बर्बाद हो चुका है कि अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। सो अब GS 4 देने का मतलब ही कुछ नहीं है, ऑप्शनल देने का मतलब ही कुछ नहीं है। मेरे मन में ऐसी बातें आ रही थी। तो यहाँ मैं अपनी मतलब मेरी मदर अगर वहां शायद उस समय नहीं होती, तो मुझे कोई संभाल नहीं पाता। एंड उन्होंने मुझे एक बात कही कि ठीक है, हो गया, जो होना था हो गया है, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट। कल या जो बीता हुआ कल है उसको तुम चेंज नहीं कर सकती, बट वॉट इज इन योर हैंड राइट नाउ इज वॉट इज कमिंग इन द फ्यूचर, वॉट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। अभी तुम्हारे पास GS 4 है, टेक GS 4 एज योर रिडेम्पशन पेपर, टेक GS 4 इन सच अ स्ट्राइड कि तुम हाईएस्ट लाओगे। ये भूल जाओ कि पहले क्या हुआ, जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा बूस्टेड अब उसके बाद उस पेपर में गई थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे GS 4 में डिसेंट इनफ मार्क्स आए होंगे, इफ नॉट ग्रेट। बट आई थिंक अगर उस समय मेरे को मम्मी ने वो बात बताई नहीं होती, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज तरीके से एग्जाम हॉल में घुसती, और वो मेरे पेपर में रिफ्लेक्ट होता। सो ये जो मोटिवेशन, कंटिन्यूअस पुश मेरे को जो मिला, वो मेरा कहीं ना कहीं कोपिंग मैकेनिज्म रहा था। सिमी, आपके पेरेंट्स को हमारा नतमस्तक है। माँ बाप अपने बच्चे का इस तरह अगर समर्थन करें तो वो बड़ी बड़ी बुलंदियों पे जरूर पहुंचते हैं। और मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। हाउ हैज योर फैमिली हेल्प्ड यू इन योर एकेडमिक सक्सेस? व्हाट इज योर एडवाइस टू द पेरेंट्स हु आर वाचिंग इन द ऑडियंस, कि वो अपने जी, बच्चे के लिए क्या करें? सो अगर मैं अपने पेरेंट्स का बात बताऊं इन द जर्नी, सो माय फादर एंड आई हैव अ वेरी ऐसे पेप टॉक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कि वो जब भी कोई बड़ा एग्जाम होने वाला है या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, ही विल सिट मी डाउन और टेक मी ऑन अ वॉक एंड गिव मी लाइक ज्ञान, जिंदगी का ज्ञान सॉर्ट ऑफ। सो आई रिमेम्बर जब मैं फाइनल ईयर में थी एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर UPSC, मैंने पापा को बोला कि फादर आई टेक अ ड्रॉप ईयर, आई प्रिपेयर एंड देन आई गिव द एग्जाम। तो आई वॉज एमिंग फॉर 2020। सो अब कम दिसंबर तक आते हुए पापा को लगा कि मेरी बच्ची सीरियस नहीं है इस जर्नी को लेते हुए, बिकॉज मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लिया था विच वॉज नॉट रेलिवेंट टू माई जर्नी। तो पापा ने कहा बेटा अब देखो,
ये तो क्लियर है कि एज का बेनिफिट तुमको मिलेगा, तुम जितनी जल्दी एंटर करो। नाउ टेक दिस अटेम्प्ट एज अ ट्रायल अटेम्प्ट, ले लो, बैठ जाओ, देख लो कि कैसा होगा। अब जब उन्होंने वो बात बोली तब मेरा ऐसे जमीन खिसक गया था कि ऐसा कैसे, मतलब अभी तक तो मैं बहुत हवा में चल रही थी, मुझसे प्रिपरेशन नहीं होगा। बट देन माई पेरेंट्स वे माई साइकोलॉजिकल बूस्ट, मतलब अगर वो नहीं होते तो मैं शायद शुरुआत भी नहीं कर पाती। सो इस टाइप का। और व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट, व्हेन माय फादर केम बैक होम, हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज, देखा मैंने तुमको बोला था कि तुम इस अटेम्प्ट को दे दो। So that was the kind of push that I've got throughout my journey. I remember just मेंस के पहले अगेन मेरा ऐसी सिचुएशन हो गया था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा मेंस, बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरा समय कम था, कुछ नहीं हो पाएगा। अगेन माय फादर with one of his great pep talks sat me down and said कि if you can't do it, no one else can. So he मतलब took me to another pedestal कि तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं, you are the best, and this is something he has done from जब मैं बहुत छोटी थी। he always used to say कि देखो जिंदगी में हमेशा तुमसे कोई ना कोई बेटर इंसान रहेगा, बट your effort should be to make yourself the best in whatever field you take. एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है कि मैं हर डिसीजन अपनी तरह से लूं। जब मैं 11th में पीसीएम इकोनॉमिक्स ले रही थी, मेरे स्कूल से कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स में टॉप नहीं किया था। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन आई आस्क्ड माय फादर कि पापा इकोनॉमिक्स में कोई टॉप नहीं किया है, then you will be the first one to do it, why do you worry about it? And that I was the first one who topped with PCM economics at my school. So ये जो एक मोटिवेशनल बूस्ट, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मुझे पेरेंट्स ने हमेशा प्रोवाइड की है। एंड यही सेम चीज मेरे मतलब जैसे आई एम वेरी क्लोज टू माई नानी, सो शी इज लाइक माई गो टू पर्सन इफ आई वॉन्ट टू टॉक इन स्ट्रेस सिचुएशंस। तो उनसे भी यही चीजें, इवन इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, they do understand the psychological challenges or the trauma that you might face in the journey, and वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही help करते हैं। So to all the parents who are watching this, it's not just relevant to UPSC journey, but any decision that your child takes, you try to help him to get that clarity in his mind, in his or her mind कि उसको क्या करना है। अभी क्या होता है कि जब बच्चे 11th 12th में घुसते हैं या 11th 12th से कॉलेज में आते हैं, उनकी उनको ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर देम। जब हम भिलाई में रहे, हम या तो मेडिकल या फिर आईआईटी सोचते हैं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं सोचते हैं। बट देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, देयर इज लॉ, देयर आर मैनेजमेंट कॉलेजेस, देयर इज वेटनरी, देयर इज फार्मेसी। तो ये सारी ऑप्शंस के बारे में अपने बच्चों को बताइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ जो लाइफ की मेजर डिसीजन है वो डिस्कस कीजिए। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश नहीं किया था यूपीएससी के लिए। आफ्टर आई टुक द डिसीजन, आई वाज द वन हु सैट डाउन माय पेरेंट्स एंड टॉक टू देम अबाउट इट कि मम्मी देखो आईआईटी कर लिया है बट मुझे इंजीनियरिंग में नहीं करना है आगे जॉब, आई वांट टू गो इनटू यूपीएससी। So I had to convince them, but that sort of two-way communication is very important between parents and children. So that is one suggestion I would want to give to all parents. बहुत ही ब्यूटीफुली आपने आंसर किया है और यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं। अभी मुझे गौरव साहू, आप अपना क्वेश्चन दोबारा लिखिए, आपका बैकलॉग है क्या वो समझ नहीं आ रहा है। सिमी, व्हाट डू यू थिंक, अच्छा, हु डू यू थिंक शुड नॉट अप्लाई फॉर यूपीएससी, दैट इज हु इज नॉट गुड फिट फॉर दिस एग्जाम एंड हु शुड अप्लाई? ये सवाल आपसे शाश्वत शुक्ला ने पूछा है। जी, who is not good fit for UPSC? First, जो अपने पेरेंट्स के कहने पे एग्जाम दे रहे हैं, you will be wasting your parents time, your parents money if that is involved. So no, your motivation should come from inside you. Yes, ये आपके पेरेंट्स आपको पुश कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए कि yes, this is the journey you want to take. Second, those people who are joining these services thinking कि पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा या एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मिलेगा, नो, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू, बिकॉज with great power comes great responsibility, and this exam, once you enter into the services, you will have a huge responsibility on your head, and that should not turn into a burden for you. आप सिर्फ इसकी एक चमक धमक को देखते ही, जैसे हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड बाहर से बहुत ग्लैमरस रखता है, जैसे आईएएस की लाइफ एक बाहर से बहुत ग्लैमरस रखती है, उस ग्लैमरस लाइफ को परस्यू करते हुए इस सर्विस में मत आइए। एक सीरियस, अगर आपके मन में एक इच्छा है, आपको लगता है कि आपको आपकी देश की सेवा करनी है, दिस इज द राइट जर्नी। इवन इफ अगर आप सोच रहे हैं कि आपको देश की सेवा करनी है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज टू डू इट।
you can join the social sector, you can join government consulting, there are lots of other ways to do it. आप सारे options को consider कीजिए and then finally decide which is the best fit for you. And I think anyone, जैसे मैंने बोला कि कोई ढांचा नहीं है जिसमें से निकल के आते हैं IAS ऑफिसर्स, सब सेम नहीं दिखते हैं, सबकी अलग हॉबीज होती है, सबके अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबकी अलग रुचि है कि आगे चल के सर्विस में उनको क्या बदलाव लाना है. सो अगर आपकी मन के अंदर से ये इच्छा डेवलप हो रही है कि दिस इज द वे आई वांट टू सर्व द नेशन, देन यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम. वंडरफुली आंसर्ड सिमी. अपने दिल की आवाज को सुनिए दोस्तों, पिता माता से बैठ के उनसे बात कीजिए, ना कि केवल उनकी बातें मानिए. और गौरव का सवाल दिख रहा है, अब हम पूछ लेते हैं कि वो हाउ डिड यू क्लियर योर बैकलॉग्स. वो IIT JEE की प्रिपरेशन के बैकलॉग्स कैसे क्लियर करना है वो आपसे पूछना चाहते हैं. इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, वो प्रिपरेशन के समय की बैकलॉग्स की बात कर रहे हैं. हाँ, उनका एक्चुअली सवाल ऐसे ही कुछ है और दिख पूरा नहीं रहा है क्योंकि ऊपर स्क्रॉल करके चला गया है एंड वी कांट डू इट हियर. सो गौरव, आपका बैकलॉग JEE प्रिपरेशन से रिलेटेड है और साथ में आप UPSC की भी तैयारी करना चाहते हैं, इस सवाल को कृपया दोबारा भेजें. तब तक सिमी आप ये बताइए, ये सवाल वंदना अग्रवाल सिंगापुर ने आपसे भी जानना चाहा है. ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है सिंगापुर की. व्हाट आर योर एस्पिरेशंस फॉर द नेशन? So I think first of all, any person who brings a change in any amount for this country is a star in itself. It's a contributing to the nation building in itself. मेरे अगर पर्सनल एस्पिरेशंस पूछा जाए कि किस सेक्टर में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, फर्स्टली विमेन एम्पावरमेंट एंड सेकेंडली एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज दीज आर टू सेक्टर्स विच आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. मैं एक स्टूडेंट इनिशिएटिव जो IIT बॉम्बे का है, अभ्यासिका करके, जो वहाँ के जो नियर बाई स्लम्स या अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हेल्प करता है JEE की प्रिपरेशन के लिए और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए. तो उनकी एक्सपीरियंसेस से मुझे काफी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज इस चीज में पता चली हैं. So these are two fields where I really want to focus once I get into the administration. But ऐसे तो any sector, any field, any role that I'm given, I'll give a 100% to it. वो तो हमें कोई शक ही नहीं है. जिस तरह से आप बात करती हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, आपके परिवार वालों को सच में हमारी तरफ से बधाइयां भी दीजिए. और मुझे लगता है मैं आपके पापा को पेरेंटिंग कॉन्फ्रेंस में बहुत जल्दी न्योता देने वाली हूँ, तो उनसे कहिए थोड़ा समय हमारे लिए निकालें, क्योंकि हम चाहेंगे और सिमी निकल के भिलाई से आए. सिमी, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं, इसके बाद हम लोग चैट पे जो सवाल आए हैं वो लेंगे. तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, आप एक ही सवाल पूछिए. मित्रों, बहुत बहुत बार मत टाइप कीजिए, आपको शायद अलाउ नहीं करेगा वो ज्यादा कमेंट के लिए. What would you suggest to those starting out their journey, early college years, and also somebody asked here, class 12th का. तो मे बी आप रोल मॉडल एक लेके या आप एक रोल प्ले कर लीजिए. समझिए आपके सामने 12वीं का एक बच्चा खड़ा है और वो दिशाहीन है, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए. पेरेंट्स कह रहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए. अब तो खैर उसने सब्जेक्ट चूज कर लिया है, कुछ बच्चों ने गलत सब्जेक्ट भी चूज कर लिया है. तो आप उसको कैसे दिशा देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कीजिए. अब मुझे समझ आ रहा है कि ये बात कहना जितना आसान है शायद करना बहुत ही मुश्किल हो, बट फिर भी आप ऐसे सीनियर से बात कीजिए जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं. अगर आपको क्रिएटिव लाइन में इंटरेस्ट है तो आप किसी डिजाइनर से बात कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनसे आपको लगता है कि आपको देख के कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है. एक बार जब आप उस बात के बारे में क्लियर हैं, आपको पता है कि since you've chosen your subjects 11th 12th में, आप कहीं ना कहीं थोड़े बंद गए in terms of deciding कि आपको कहाँ जाना है. बट आप वहां जाके भी, आप उस कॉलेज में जाके भी अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं. आप देखिए कि आपको कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज जो आप करके उस चीज में अपने आप को सक्षम कर सकते हैं. एंड जितना आप उस चीज में प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे. और एक चीज जो आप ध्यान में रखिए ये है कि अपने आप को सीमित मत कीजिए. अगर जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सपोज JEE के एग्जाम में अच्छा नहीं किया है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. दिस इज वन फेज ऑफ द जर्नी, जस्ट लाइक UPSC. आपने लाइफ में एक जर्नी का एक फेज क्रॉस किया, कहीं आपके सक्षम रहे, कहीं आप सक्षम नहीं रहे, तो एक नई जर्नी शुरू कीजिए. अब देयर आर लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम PCM.
आप साइंस बैकग्राउंड में जो जैसे बीएससी होता है वो कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, और वहां से भी आपके पास बहुत सारे अच्छे करियर प्रोफाइल्स हैं। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, दूसरी दूसरी चीजें जानने की कोशिश कीजिए, सीनियर से बात कीजिए, गूगल सर्च कीजिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड फिर अपना मन बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस पूरे प्रोसेस में अपने पेरेंट्स को बताते रहिए कि आपकी किस तरफ इंटरेस्ट आ रही है, ताकि वो भी आपको सही तरह से गाइड कर सके। बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसके लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा और पहले से मन नहीं बना लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। गौरव जी साहू का पूरा सवाल आ गया है भाई, इसे आंसर कर दीजिए। मैम, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई एम जी प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, सो प्लीज एड्रेस मी दैट हाउ शुड आई क्लियर माई बैकलॉग्स। माई प्रॉब्लम इज दैट आई लैक इन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का खेल है जी, ये खुद उनको पता भी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका चैलेंज क्या है, जो कि कंसिस्टेंसी आपने कहा, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं सोल्यूशन निकालने में। अब आपको कंसिस्टेंसी की ध्यान रखनी पड़ेगी। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो अपने लिए एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि सुबह मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 3 घंटे। अब आपने फिक्स कर लिया है तो उतने समय के लिए बैठिए। सो ये शायद मैंने कोई एक वेब सीरीज में ही देखा था, जेई प्रिपरेशन रिलेटेड, कि अगर आप किसी चीज को 21 डेज तक करेंगे तो आपको उसकी हैबिट बन जाती है। तो वो चीज कीजिए, आप बैठिए एक जगह पर 3 घंटे 2 घंटे जो भी आपने डिसाइड किया है, और अपने मन में एक टारगेट लेके बैठिए कि इतना तो मुझे तैयार करना ही है। तो आप अपने बैकलॉग्स के लिए डेली का 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, एक रखिए। अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं इतना करना चाहता हूँ कंप्लीट। उतना करने के बाद ही आप उस जगह से उठिए, ये आप इंश्योर कीजिए। दूसरा, जो हम क्या होता है, इवन यूपीएससी और जेई प्रिपरेशन दोनों में कॉमन है कि हमारे डाउट्स पाइल अप हो जाते हैं, और फिर इतने सारे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, और वो एक्चुअल एग्जाम में वापस आते हैं और हम गलत कर देते हैं। तो आप समय के साथ साथ, मैं एक लिस्ट बना के रखती थी कि मुझे ये डाउट्स पूछने हैं, भले ही वो यूपीएससी था या जेई था। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम सर से मिलती थी अपने जो भी उसके कंसर्न सब्जेक्ट के, मैं उनको वो सवाल वहीं के वहीं क्लियर करती रहती थी। तो आप 1 हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ये चीज करते रहिए, ताकि कोई डाउट्स पाइल अप ना हो, और आपको एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा ना लगे कि बाप रे कितना सारा पहाड़ बच गया रिवाइज करने के लिए। सही बात आपने कही। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप उनको मेंटर करिए और उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के और तरह तरह के। तो मैं इन सब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का पेज लाइक कीजिए और इसमें होने वाले इवेंट्स पे शामिल होइए। हम मेंटरशिप के लिए काफी कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, जूम में करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आए। सिमी, हम समय से ऊपर चले गए हैं अभी, लेकिन बहुत सवाल हैं, तो मुझे लगता है थोड़े सवालों के आप जवाब दीजिए। आपके जी पास अभी बिल्कुल समय है थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो यहाँ पे है, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अनेबल टू मैनेज माय टाइम। अन्नू दुबे पूछ रहे हैं। अब आप ये सारे जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम पूछ पाए। जी। सो टाइम मैनेजमेंट का बात जब हम करते हैं, लोग सोचते हैं कि समय नहीं मिल रहा है। समय निकालना पड़ता है, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें से समय निकालना पड़ता है। और ये तभी होगा जब आप कॉन्शियसली दिमाग में रखे हैं एक बात, कि मुझे इससे ज्यादा समय इस एक्टिविटी को नहीं देना है। तो अगर मैं आईआईटी में, मैंने बोला कि मैं इतनी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, बट हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड में होता था कि अगर मैं 8 से 9 बजे तक का टाइम खो खो के लिए रखी हूँ, तो मैं वो समय एक्सीड नहीं करूंगी। जब आप कॉन्शियसली ये चीज करना शुरू करते हैं, तो आपके पास समय निकलने लगता है। दूसरा, आप एक टाइम टेबल बनाएं, अपने लिए डिसाइड करें कि सुबह का समय इस चीज के लिए, शाम का समय इस चीज के लिए, आज दिन भर में मुझे इतना करना है। जब आप टारगेट पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस चक्कर में ही आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा। तीसरा, थोड़ा अगर आप मेडिटेशन करें, या थोड़ा जो परसिवियरेंस है उसके लिए थोड़ा काम करें। परसिवियरेंस का मतलब ऐसा कि आप एक धैर्य बना के रखें कि आप इस जर्नी में जो भी आप कर रहे हैं ओवरनाइट नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो रखते हुए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, दिमाग को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर आप अपना टाइम बेटर मैनेज कर पाएंगे। ये भवानी जी पूछ रही हैं, मैम आई एम इन 2 ईयर सेकेंड ईयर, आई डिसाइडेड टू परस्यू यूपीएससी आफ्टर माई कॉलेज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडीज फ्रॉम नाउ, हाउ टू इनिशिएट, प्लीज टेल अस सिलेबस टू।
तो ये सिलेबस पूछना चाह रही हैं जो आपको सिमी क्या बताएंगी, वो तो मिल ही जाएगा नेट से। क्या जी पूरा पढ़ बिल्कुल। पाएंगी वो सिलेबस ये कोर्स खत्म करने के बाद? ये आप बताइए इनको। तो भवानी जी, शायद आपने पहले के शुरुआत का पार्ट मिस कर दिया है, बट हमने डिस्कस किया कि शुरू में आप सीधा प्रिपरेशन में मत घुसिए। आप सिलेबस देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक्स, बेसिक बुक्स से शुरू कीजिए, फिर आप थोड़ी डिफिकल्ट बुक्स, फिर आप नॉन फिक्शन बुक्स वैसे पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और फिर धीरे धीरे जो समय है प्रिपरेशन के लिए वो बढ़ाते जाइए। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकती हैं, वो एक बहुत ही अच्छा हैबिट होगा। आप किसी भी फील्ड में जाएं, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़िए। बहुत अच्छा जवाब है। एक और चीज है सिमी, जो जो यहाँ पे चैट में सवाल पूछ रहे हैं, जब आपको फुर्सत मिलेगी आज या कल, आप इन लोग को पर्सनली भी रिप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे चैट में आके, जो सवाल आपको जी अच्छा लगे। तो हम एक सवाल जी। और ले लेते हैं यशानु बघेल जी का। मैम, हाउ डज इट फाइनली फील when after so much of struggle you sit in the final interview? Okay, you sit in the final interview. Does it feel like the hot seat of KBC, or it feels like another leader for success, which has to be clear? Please tell your experience पूछना चाह लैडर रहा है का कि सर। आप। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, जब मुझे याद है जिस दिन मैं यूपीएससी के भवन पहुंची थी, वहां पे हमारे इंटरव्यूज होते हैं। द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट बिल्डिंग, आई फेल्ट वेरी प्राउड। आई फेल्ट आई हैड अचीव्ड सच ए ह्यूज थिंग इन सच ए शॉर्ट टाइम। आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि मैं इतने आगे तक पहुंच पाई। आई रियली फेल्ट वेरी ग्रेटफुल दैट डे। दैट वाज माय फर्स्ट इमोशन। जब मैं गई, मेरा आफ्टरनून सेशन में था, 21 फरवरी, और मुझे पीके जोशी सर का पैनल मिला था। नाउ आई डोंट नो हाउ टू कंपेयर इट विद केबीसी, बिकॉज मैं कभी केबीसी नहीं गई हूँ, बट आई डेफिनेटली नो कि उस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको यहाँ वहां का ज्ञान नहीं पूछा जाता है। तो बहुत ही रेलिवेंट चीजें पूछी जाती हैं। अंटिल अनलेस आपका एक स्ट्रेस इंटरव्यू है, वो एक अलग सिचुएशन होता है, बट मोस्ट पीपल फेस अ वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल इंटरव्यू, जैसा मेरा भी रहा। सो यस, जब आप जाते हैं, आपको इंटरव्यू के 5 मिनट पहले तक आपको पैनल नहीं पता होता है। सो उस रूम में जब आप वेट करते रहते, लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशंस एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन। तो ये चीजें मैंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दी थी, उस दिन भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दी इन चीजों पे। आपको रूम के बाहर बिठा दिया जाता है एक चेयर पे, तब आपको 5 मिनट मिले हैं, आप जान गए हैं आपका पैनल कौन सा है। एंड फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट अ बिट नम। Frankly speaking, I felt a bit numb because I felt कि yeah, this is it, this is the end of the journey, this is my final opportunity to prove myself. तो वो एक overwhelming feeling थी, but I quickly gathered myself कि नहीं, अब तो we have to be confident, जो हो रहा है, we have come so far, so why not this will be just another leg in the race. So वो चीज सोचते हुए एक बहुत ही कामनेस के साथ अपने मन को शांत किया मैंने सोचा कि अंदर जाके एक बहुत ही फॉर्मल कॉन्वर्सेशन टाइप का होगा, बट इट हैज टू बी फॉर्मल, ये ध्यान में रखते हुए मैं अंदर गई। सो देयर आर 5 members and they can throw questions from you in any direction they want, but I had a very cordial interview. The questions were very interesting. अगर मैं कुछ recall कर सकूं, if we have that much time. Second member थी एक lady member, she just gave an observation कि आप IIT बॉम्बे में पढ़ी हैं, वहां पे इतना गंदा एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहां स्ट्रे काउज घूमती रहती हैं, इतनी सारी गायें, दिस इज जस्ट नॉट अ गुड एनवायरनमेंट टू स्टडी इन। अब मैं उनको बहुत तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, नो मैम, देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रीनरी अराउंड एंड ठीक है गाय हैं, बट देर आल्सो लिविंग बीइंग्स एंड वो रह रही हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट देन शी रिकॉल्ड एन इंसिडेंट दैट हैड जस्ट हैपेंड कि एक गाय ने एक बच्चे को हर्ट कर दिया था। सो नाउ आई थॉट कि अब मैं इसको पॉजिटिव भी बोलूं या नेगेटिव भी बोलूं, वो कहीं को जाएगा नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मैम, यस मैम, एक्चुअली देयर इज अ जोक इन आईआईटी बॉम्बे कि वी स्टडीड सो हार्ड फॉर 2-3 years, we put so much efforts to come to this place, but these cows just had a free pass to this place. This is such a huge injustice on our part. So I remember the entire room burst out laughing. And उसके बाद से जो एनर्जी लेवल है इंटरव्यू का एंड द काइंड ऑफ चेंज हो क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, वो काफी चेंज हो गए। फिर मैंने जैसे बताया कि आपको बहुत तरह से प्रोब करते हैं, आपकी पूरी बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि रूरल विजिट, तो रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ में आपको क्या डिफरेंस लगा, रूरल के 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव बातें बताए। तो नाउ आई मेड द आंसर्स वेरी पर्सनलाइज्ड। मैंने बोला कि सर, आई हैड गॉन टू अ प्लेस कॉल्ड झाबुआ,
वहां पे there's a tradition called halma, which is a very old cultural tradition where people come together and they till the fields to for the harvest, and they do it for free. So this is a rich cultural tradition which has then been used by the administration there to this is a water scanty area, तो वहां पे ponds बनाया गया है etc. वो सब activities में use किया गया. So these traditions are rural life is very rich in these traditions. But there are certain प्रथा जो चले आ रहे हैं जो अच्छे नहीं है. जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक टोन्ही प्रथा होती है जिसमें ओल्ड विमेन को माना जाता है कि दे प्रैक्टिस विचक्राफ्ट एंड उनको पूरी कम्युनिटी ऑस्ट्रेसाइज करती है. तो अब जब मैंने ये जवाब इनको बताया था, द नेक्स्ट पैनल मेंबर इमीडिएटली पिक्ड इट अप. उन्होंने कहा कि अच्छा, अब आपने देखा है कि ये प्रथा होती है, तो आप उस एरिया में अगर आप कलेक्टर बन के जाते हो, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन. तो मैंने उनको कहा कि सर, नाउ दीज आर ट्राइबल पीपल, दीज पीपल इफ वी सिंपली गो आउट देयर एंड गिव आवर मैसेज, तो उनको लगेगा कि ये हमारे कल्चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हमारे वैल्यूज के साथ छेड़खानी कर रहे हैं. So what I'll do, I'll approach the sarpanch, I'll approach their tribal leaders, the religious leaders, people of good respectable holding in the village areas, and उनके थ्रू मैं ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी. एंड दूसरा जो लोकल डायलेक्ट्स है लाइक गोंडी, हल्बी, वो वाले लैंग्वेजेस को यूज करके मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो. ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के चले जाते ही वापस प्रथा आ गई है. सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल, दिस इज अ वेरी सस्टेनेबल, दिस इज अ वेरी दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट दिस इज समथिंग विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द फील्ड. तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं सोचने, बट बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन सोचने. सो ऐसे काफी इंसिडेंसेस रहे हैं, बट दीज वर टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड मी. नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपने जो समझाया भी है. यहाँ पे बहुत तारीफ भी आ रही है, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, प्राउड ऑफ यू गर्ल, ये श्रद्धा ने कहा है जो आपकी टीचर रही है डीपीएस की. और एक अनु फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि मैम कैन यू टेल अस अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर 12th बोर्ड. सो मुझे लगता है तुम सिमी एक छोटी सी बात, इनको एक मंत्र दे दो आज जो इनकी गांठ बांध ले और उसको फॉलो करके ये आगे निकल जाए. ये बहुत जरूरी है कि उसको घूंटी बना के पिला दिया जाए. सो कुछ चीजें तो एकदम क्लियर होनी चाहिए. पहली बात तो आप अपने डाउट्स पाइल अप मत होने दीजिए. वीकली, बाई मंथली आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए. जैसे भी है अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर से, अपने टीचर से पूछ के ये बातें क्लियर कर लीजिए. बाद में, क्योंकि जब आपका एग्जाम के बहुत क्लोज आ जाएगा, वरना वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा. दूसरी बात, आप रिवाइज करते रहिए. अगर आप अभी जस्ट 12th में गई हैं या अभी आप जाने वाली हैं, तो जो समर वेकेशन टाइम होता है या जो दुर्गा पूजा वो वेकेशंस का टाइम होता है, खैर अभी तो आप कोविड के लिए घर पे हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो ये जो फेस्टिवल्स टाइम होता है, आपको छुट्टी मिलेगी, आप उस समय को बहुत अच्छे से यूज कीजिए पुराना रिवाइज करने के लिए, ताकि आपका पुराना भी अप टू डेट हो जाए. तीसरा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके. अब पीसीएम में एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वापस थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक आर्ट सब्जेक्ट्स. बट आपको क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने हैं, बहुत वैरायटी के करने हैं, उनको डिस्कस कीजिए, मल्टीपल तरीके निकालिए सॉल्व करने के. और जब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज हो गया है, तो प्लीज आप कंटिन्यूअस मतलब जो टेस्ट्स होते हैं उनको एक एग्जाम एनवायरनमेंट में दीजिए. मैं ये यूपीएससी के लिए भी कहती हूँ और जेई के प्रिपरेशन के लिए भी कहती हूँ. अगर आप 3 घंटे बैठ की एक जगह उस एग्जाम के माहौल में एग्जाम नहीं देंगे, तो आपको एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर कभी फील नहीं होगा. मुझे याद है जेई के मेंस और एडवांस के बीच में दोपहर समय में मुझे सोने की बहुत आदत थी, तो मुझे बहुत नींद आता था सेकंड पेपर में. तो वो जो 2 महीने थे, मैंने डेली, ऑलमोस्ट डेली एक पेपर दोपहर के समय लिखा था, और मतलब लिख लिया था उस 3 घंटे के समय में, और बाद में जो गलत हुए उनको देख लिया. बट वो चीज करने की वजह से ऑलमोस्ट जेई एडवांस आते तक मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी. तो वो चीज आपको करनी है. सो आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स. नहीं, बहुत अच्छी बात बताई है सुबी. सब लोग बहुत खुश हैं और मुझे लगता है आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं. लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो सिमी करण का ब्लॉग फॉलो कीजिएगा. सिमी ये चैट खत्म होने के बाद यहाँ पे एक लिंक डालेंगी उनके ब्लॉग का, और कोशिश करके जो क्वेश्चंस छूट गए हैं उनका आंसर देंगी. हमने सेशन 1 घंटे का रखा था और 1.5 घंटे पे पहुंच रहा है. लेकिन सिमी, कोई भी इंटरव्यू रैपिड फायर के बिना तो खत्म नहीं हो सकता. तो ब्रेस योरसेल्फ अप गर्ल. Are you ready for the deadly questions? Yes, ma'am. Karan,
These questions are not from the syllabus. They are all out of syllabus questions. You have to But be life quick. is out of syllabus. Ha! That is very good. Your attitude toward life really amazes me. Simi, before I ask you these questions, I would like to congratulate you to be so inspiring, even to the older generation like me. Younger तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फैन हैं. तो आप प्लीज अपने फैन, अच्छा अभी आप सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत जल्दी पाने ही वाली हैं. वैसे तो आप भिलाई और छत्तीसगढ़ में सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, लेकिन आप सेलिब्रिटी तब बनेंगी जब आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलेंगी और एक फोटो शेयर करेंगी. तब आपको एहसास होगा लाइक्स का, लोगों के प्यार का. आप जरूर ये कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे आ जाइए. नाउ वी विल आस्क यू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस. Which books are you reading these days? So the book right now I'm reading is India Unbound by Gurucharan Das. देखिए ये नॉन फिक्शन पढ़ रही हैं आप लोग, प्लीज किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए. What's your favorite food from Odisha? There's a pitha called Haldi Patra Pitha. So that pitha it's like sort of an idli, but it's made inside haldi ka patta. So that smell, that fragrance is there. So that is my favorite dish. And from Chhattisgarh? I'm not culturally इतना knowledge नहीं है मुझे. भिलाई का कुछ बता दीजिए जो आपको खाना पसंद है. भिलाई में कहाँ आप ज्यादातर जाती हैं? So भिलाई में तो यहाँ मधुरम और वहां पे वेजी इंडिया वहीं पे जाना होता है. आप वेजिटेरियन है सिमी? नो मैम, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन. ओके, तो नॉन वेज में आपकी फेवरेट डिश क्या है? चिकन बिरयानी. लवली, आई मेक अमेजिंग चिकन बिरयानी. आई हैव टू मीट यू. वो सवाल जिससे, वो बताइए वो सवाल जिससे आप बोर हो चुकी हैं. आपको कैसा लग रहा है ये क्वालिफाई करने के बाद? ये हर जर्नलिस्ट किसी भी इंटरव्यू में हर उस इंसान से, चाहे वो इलेक्शन जीत के आया हो, चाहे उसकी फिल्म हिट हुई हो, पूछता है आपको कैसा लग रहा है. वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फीलिंग शेयर करें. पर ये क्वेश्चन बहुत अनोइंग है, मैंने नहीं पूछा. पर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत रोबोटिक लग गया है. अब मैं जब बोल रही हूँ मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है. एग्जैक्टली. अच्छा ये बताइए सिमी, आपका फेवरेट म्यूजिक बैंड कौन सा है? सो अभी दैट विल बी अ वेरी स्ट्रेंज आंसर. It's a South Korean band called Blackpink. And I don't know why I like it. It's probably because मेरी बहन उसको दिन भर play करती रहती है. But now I've also started liking it. Which so is it's a the band song? called Blackpink. Is it not BTS? South Korea ka? No, it's not BTS. It's another one. It's the girls group. It's called Blackpink. And I think they recently broke records with, but I think BTS again beat them. हाँ, BTS ने record break किया. मैंने भी अभी Korean music सुनना शुरू किया है, इसलिए पूछा मैंने. I don't know why I like it, but the beats and I've started loving it. Oh, good. So आप लोग सिमी की favorite music सुनिए. एक बात बताइए सिमी, what meal can you cook? Name the dishes. So I think except for non-veg, I can cook everything. It's just that जब मैं टच छूट जाता है तो वो गाड़ी के ड्राइविंग की तरह है. फिर मुझे मम्मी को मुझे गाइड करना पड़ता है जैसे कार के लिए पापा को करना पड़ता है. So but I can cook everything. मतलब other than non-vegetarian. मतलब आपसे दाल चावल रोटी सब्जी की उम्मीद की जा सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. अरे वाह. मतलब सिमी ने केवल पढ़ाई नहीं की है, किचन में भी समय बिताया है. और मुझे लगता है आज की जनरेशन के हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किचन में जरूर जाना चाहिए, अपने लिए खाना बना लेना आना चाहिए. Actually, this was a necessity. It came out of a necessity. मैं जापान में रही थी 2 महीने, जो मैं जापानीज फूड डेली नहीं खा सकती थी. So then I started learning cooking everything and फिर वो सब सीख गई मैं. So nice. अच्छा, वो ज्ञान जो आपको बहुत लोग दे रहे हैं इस समय. ये कि आगे चल के तुमको किस तरह का सिविल सर्वेंट बनना है. एंड दूसरा, मेरी शादी के पीछे काफी लोगों ने कमेंट्स कर दिया, व्हिच आई एम वेरी अनॉयड बाय. इग्नोर करो. इग्नोर करना अच्छी पॉलिसी है. Last movie you have watched, or any movie would you like to recommend? Movie I would like to recommend. There's this very beautiful movie which is very less known in Bollywood. It's called Neel Bate Sannata. I have seen that. It's a very beautiful movie. It's about a lady who is a maid and her daughter. So I would definitely recommend anyone and everyone to watch it. Good recommendation, Simi. I have seen the movie. अच्छा,
What are must listen songs on your playlist? You have told about the Korean one, but what are your must listen songs? So अभी तो मोस्टली कोरियन सॉन्ग्स बज रहे हैं. इसके अलावा देयर इज दिस सॉन्ग कॉल्ड काफी राना, so that song, and Sweetheart from the same movie. So these I two know. songs are most high ये on my ये playlist न्यूज की right now. वजह से तो नहीं है, ये न्यूज की वजह से तो ये No, गाने no, नहीं no, सुने no, जा no, रहे. no, no. Okay. But I too love these two songs. The lovely movie. Sorry to have missed this guy, really. Which superpower would you like to have? Just कि जो मैं जैसे जब मैं ये मेरा एजुकेशन की बैकग्राउंड की वजह से कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई, आई जस्ट विश कि आई कुड गो बैक इन टाइम फॉर दीज किड्स एंड स्टार्ट लेट देम स्टार्ट ओवर, लेट देम हैव अ फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ, एंड उनको वो सारी मिल जाए अपॉर्चुनिटीज जो मुझे मिली. इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आई नो कि आई जस्ट वांट टू गो बैक इन टाइम सो दैट वो बच्चे वो उस पीरियड को जो वो मिस करे हैं वो वहां वापस जाके दे कैन स्टार्ट ओवर अगेन. Simi, if this is the superpower you need, you already know you are ambassador for Beck. You can always help as many kids as you want by spreading the good work. You can just keep planning. आप सबको मैं ये बता दूं, सिमी ने हमारे लिए अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है और हम उसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो सिमी, इस तरह से हम आगे बहुत लोगों की मदद करते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा है. आईएएस के एग्जाम के बाद बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिलती है टू फिनिश और कंप्लीट और परस्यू देयर एजुकेशन ड्रीम. सो विच फॉरेन यूनिवर्सिटी वुड यू लाइक टू गो एंड डू अ डिग्री? अब इस क्वेश्चन में कई लोग परेशान हो जाएंगे कि सिमी ने तो इतनी पढ़ाई कर ली, बट क्या सिमी और पढ़ना चाहती है? Yes, the question to the second part, yes, मैं और पढ़ना चाहती हूँ, and the degree that I would like to have is a master's and if a PhD if possible in developmental economics, and या तो Oxford या फिर Harvard if possible. So these are my go-to places. Lovely. And the last but not very easy question, that is, you have to choose between one of these two. Juhi Chawla or Juhi Shukla? Juhi Shukla, any day. You get full marks for the interview today, Simi. Simi, अब हमें पता चला है कि आपने एग्जाम कैसे पास किया है. आप इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर्ड हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं. आप अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप उसको झेल लेती हैं चाहे कितनी भी मुसीबतें आए. आपका सपोर्ट सिस्टम आपके घर में जो है वो अमेजिंग है और ये ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, ये आप मान लीजिए. इसके अलावा आप अपने फेलियर से डरती नहीं है, उनको लड़के काबू करती हैं. तो सिमी, आपसे जो ये सेशन हुआ इसमें मैंने मेरे ख्याल से 50 वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन का कमेंट्स पढ़ लिए हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल आईएएस का जॉब. पीपल आर ऑल्सो आस्किंग कि आप कब सर्विसेज की ट्रेनिंग ज्वाइन कर रही हैं. तो आप ट्रेनिंग के बारे में कुछ और आखिरी लास्ट के कुछ वर्ड्स बोलना चाहें तो प्लीज फील फ्री एंड स्पीक. सो हमारी आईएएस की ट्रेनिंग 2 साल की होती है. 1 साल हम मसूरी में स्पेंड करते हैं, विच इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर्मली कॉल्ड एज लबासना. और 1 साल हम जो भी हमारा कैडर हमको मिलता है उसमें हम एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच कर दिए जाते हैं एंड हम डिफरेंट जो बॉडीज हैं इन एन एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं. तो दिस इज 2 years. शायद हमको इसमें भारत दर्शन की अपॉर्चुनिटी इस साल मिले या ना मिले ये हमको क्लियर नहीं है. और दूसरा हमारा ये है कि फॉरेन जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो ऑफिशियली अभी तक जो टेंटेटिव मतलब देयर आर नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट येट, बट टेंटेटिव डेट्स जो कहे जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम 12th of October, but there is no official announcement yet, so there are certain delays this year. सिमी, एक सवाल हमने मिस कर दिया है, वो है आजकल के युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया का एडिक्शन. इसको कैसे काबू में किया जाए, कितना यूसेज किया जाए और उसके साथ पढ़ाई कैसी की जाए, ये भी आप बता दीजिए. So social media I personally feel is a double-edged sword. ये डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से यूज कर रहे हैं और आपका उससे आउटपुट क्या निकल रहा है. तो अब हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम घंटों स्पेंड कर देते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए. सो वो चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि अगर प्रेपरेशन के समय पूछा जाए तो दिस वाज माय पर्सनल प्रेफरेंस, बट आई नेवर वेंट ऑफ ग्रिड. मैं हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव थी. आई वॉज ऑन फेसबुक, आई यूज टू टॉक टू पीपल, बट आई हैड केप्ट इट वेरी लिमिटेड. एंड दूसरा चीज जो मैंने किया था वो ये था कि जो जैसे द हिंदू हो जाए या इंडियन एक्सप्रेस हो गए
या फिर द बेटर इंडिया हो जाए, जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहेंगे, उनको मैंने अपने फेसबुक फीड के टॉप पे रख दिया था। तो आई वुड सी देयर पेजेस फर्स्ट, अगर कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ गया तो मैं तब के तभी पढ़ लेती थी। सो दैट और फिर जब तक मैं एक्चुअल पोस्ट तक आती थी लोगों के, तो मेरा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट छूट चुका होता था। तो इस तरह से आप क्रिएटिवली फेसबुक को यूज कीजिए, अपनी सोशल सर्कल, यू डोंट एंगेज विथ यूजलेस कॉन्वर्सेशंस। आप अपना एक जो सर्कल है, आपका थिंकिंग है, आपका ओपिनियंस है, उनको डाइवर्स बनाने की कोशिश करिए। एंड और एक चीज जो प्लीज 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 अवॉइड कीजिए, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इज द फैक्ट कि जब आप, जैसे मैं फाइनल ईयर में कॉलेज में थी, लॉट्स ऑफ पीपल जिनका अभी अभी जॉब लगा था, दीज बिग फैट पे चेक्स एंड बिग रिसर्च इन कॉलेजेस दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, या उनके फेसबुक पे पोस्ट आते रहते थे। अब शुरू शुरू में इट कैन बी वेरी डिमोरलाइजिंग, एंड ये आपको मन में क्लियर करना है कि नो, दिस इज अ डिफरेंट जर्नी दैट दे हैव टेकन, और मेरी तो एम ही अलग है। तो इन सब से डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इजिली डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑफ द सोशल मीडिया। अपने हिसाब से एक स्वीट स्पॉट फाइंड कीजिए अब सोशल मीडिया को यूसेज को लेके। हेल्दी ब्रेन को रखने के लिए हेल्दी बॉडी का बनाना बहुत जरूरी है, नियमित दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है, और सिमी, आप जैसे लोगों से बात करना भी बहुत जरूरी है। बहुत मजा आया, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। यहाँ पे 11 बज गए हैं रात के, पता नहीं अब मैं आज सो पाऊंगी कि नहीं। आप क्या करने वाली है इस इंटरव्यू के बाद? सो मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स एक मूवी देखने वाले हैं। वी हैव नॉट डिसाइडेड द मूवी येट, बट अभी हम लोग प्रोबेबली एक मूवी देखने वाले हैं। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो वी स्पेंड फैमिली टाइम टुगेदर लॉट। वी अभी लॉकडाउन में तो कैरम या कार्ड्स या फिर मूवी देखना, ये हम काफी करते हैं एज मच एज पॉसिबल। और अभी तो जाने का समय आ गया, तो एवरीवन इज अ बिट सेंटी एट होम, सो अभी हम मूवी देखेंगे। तो अब टाइम आ गया है, आप अपने पापा के साथ बैठ के बातें कीजिए, परिवार को समय दीजिए, मूवी देखिए। और सिमी, हम सबकी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत उम्दा आईएएस ऑफिसर बनिए, हार्वर्ड जाइए या ऑक्सफोर्ड जाइए, जरूर जाइए, बाहर जाके पढ़ के आइए। और जब मौका मिले आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम अपने इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई तरीके से उन तक पहुंचेंगे। और सिमी, आपके पेरेंट्स के लिए नमस्कार। Thank you, friends, for joining us and making our time worthwhile. And all your questions will be answered. Don't worry. Follow Simi on social media platforms. She was definitely going to share the links with us. Ciao. Okay. Bye bye. Okay, And thank stay you, ma'am. safe. Thank you Stay so safe. much. Yeah. Yes, ma'am. Thank you so much for calling me to this platform, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पाई। And I really want to help any aspirant in any way possible. बस आप सीरियस होके प्रिपेयर करते रहिए। कोई डाउट हो मुझे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा डिले हो सकता है, but I'll definitely message you back. Okay, so everyone, all the best. All the best for everyone, whatever you want to do in life. And thank you, ma'am, for again for calling me to this platform. Thank you so much. थैंक्स टू यू सिमी। आप गेस्ट इतनी अच्छी हैं कि मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज आप सभी के लिए, कोरोना वायरस बहुत रूप से बढ़ रहा है, इससे डरना नहीं है, खुश रहना है, अपनी बॉडी को हैप्पी रखना है ताकि आप उस बीमारी से लड़ सके। और छुप के घर में बिना डॉक्टर का इलाज कराए ये गलती मत कीजिए, इससे आपकी जान भी जा सकती है। प्लीज बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी। अगर आप लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, हमें लिख भेजिए, हम आपका वार्तालाप करवाएंगे अच्छे डॉक्टरों से। और कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि कॉन्फिडेंशियल चाहिए, तो वो भी करवाएंगे। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you.